everyone. So in today's lecture we are going to cover artificial intelligence in one shot, the complete syllabus, which is going to be very generic across all the universities, no matter आप कौन सी university से हैं, because AI is the subject which is very general in common. So let's get into it. All the 5 units will be covering most of the part of this syllabus. This video also includes the previous year questions which will be very relevant to all the universities. So let's get started with our first topic, that is first unit is about introduction to AI and intelligent agent. So let's get into it. The first topic is what is AI and what is the definition and what is the scope of the AI. So talking about the artificial intelligence, if we talk about the definition, so the definition itself says that AI is the branch of the computer science that focuses on creating the systems or the machine capable of performing the task normally which require the human intelligence. Yes, it is very obvious. जो टास्क ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर करते हैं वी ट्राई टू ऑटोमेट देम यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वाई? ताकि हम इन फ्यूचर मल्टीटास्किंग कर सकें एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकें दैट ह्यूमन विल टेक. इफ़ ह्यूमन आर टेकिंग एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, तो उस एक्स और वाई अमाउंट ऑफ टाइम को कट डाउन करने के लिए एआई से हम मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली रन करवा सकें इन नो टाइम. सो दैट्स वाई वी नीड टू ट्रेन द कंप्यूटर्स और वी नीड टू ट्रेन द एल्गोरिदम इन सच अ वे दैट इट कैन परफॉर्म ऑल द टास्क वेरी इजिली, वेरी एफिशिएंटली, दैट आर वे मोर capable than human to do that same amount of task in that particular time. Sometimes या many a times हमने देखा होगा that we do take help of AI in debugging our large data set, large code which we can't really do in just a fraction of seconds, but the AI will do for us. So this is the definition. These tasks include the learning from experiences, reasoning, problem solving, understanding the natural language, recognizing the pattern and making the decision. So that is all about the definition of artificial intelligence. In simple terms अगर हम बात करें तो AI मशीन को क्या बनाता है, capable बनाता है to make them to think, learn and act intelligently. Okay, so now we are going to talk about the what is the scope of the AI. Talking about the scope, so scope of AI is very widely and continuously expanding. AI is used in almost every field where decision making is prediction and automation is required. जहाँ भी हमें प्रिडिक्शन की, ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है, वी यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मेजर एरिया की यदि हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग के जो भी काम हो गए, लर्निंग फ्रॉम द डेटा, दैट इज अ मशीन लर्निंग इज अ वेरी ह्यूज डोमेन इन विच AI is being used. Natural language processing. Don't worry, all these topics which we are listed here, we will be going to cover in detail in each and every specific unit. So now here is only a general introduction regarding the same, so that's why I'm just skimming through the part. Robotics and autonomous system, again artificial intelligence is a major backbone there. Game playing and planning में भी हमारा artificial intelligence widely यूज होता है. एंड एक्सपर्ट सिस्टम की यदि हम बात करें, जो भी हमें मतलब हम मानते हैं जिनके एजेंट्स हो गए, जिनके पास एक प्रॉपर नॉलेज बेस है विच एक्ट एज एन एक्सपर्ट एडवाइस फॉर अस. एंड जहाँ तक बात करें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तक भी AI का बहुत वाइडली यूज है. सो AI एम्स टू बिल्ड सिस्टम दैट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली इन द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट. कितना भी कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट हो, बट AI हमेशा ये एम करता है कि वो ऑपरेट करे हमेशा इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर AI or any other relevant data source, so it can develop or it is capable of making its own thinking. तो अभी हमने बात करा इंट्रोडक्शन एंड स्कोप, तो एक बार जान लेते हैं कि हाउ दिस ऑल स्टार्टेड. तो व्हाट इज द हिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो हिस्ट्री की यदि बात करें तो द कंसेप्ट ऑफ AI डेट्स बैक टू द 1950. ये सारी बातें स्टार्ट हुई हैं फ्रॉम द 1950, इन विच एलन ट्यूरिंग का नाम हमने बहुत बार सुना होगा इन द ऑटोमेटा सब्जेक्ट ऑल्सो, विच डेवलप्ड द ट्यूरिंग मशीन टू चेक द मशीन इंटेलिजेंस. सो दिस वॉज द इनिशियल फेज व्हेन द AI got started. After that, in 1956, the term artificial intelligence was coined by John McCarthy. And ये चीज़ इतनी famous है that John McCarthy is still regarded as the father of artificial intelligence. So remember that at the Dartmouth conference. So ये बात है 1956 की. Then after that 16, 70 and 80s में क्या हुआ, early AI programs लिखे गए, problem solvers के द्वारा game playing systems आए and expert system in AI का rise हमें देखने को मिलता है. And then in 1990 से 2000 हम कह सकते हैं कि AI जो है मशीन के साथ इंटीग्रेटेड होकर बहुत सारी डेटा ड्रिवन अप्रोच हमारी प्रेजेंट करने लगा. एंड प्रेजेंट एरा में तो हम जानते हैं देयर इज नो लिमिट इट विच वी आर यूजिंग द AI. सो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के जरिए अगर हम देखें तो पहले ट्यूरिंग टेस्ट हुआ, देन देयर इज डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, देन देयर इज एक्सपर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट. एंड यहाँ पे एक 1997 में इवेंट हुआ था जहाँ पे डीप ब्लू नाम का जो AI एजेंट है या बॉट कह लीजिए, उसने हराया था कैस्पारवोव को, विच इज़ अ लीडिंग चेस प्लेयर एट दैट टाइम. एंड डीप लर्निंग जो है एलेक्सनेट आप बोल लीजिए, जो 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ. देन 2020 में वी ऑल नो GPT-3 रिलीज हुआ. एंड देन 23 एंड 25 इज द बूम एरा ऑफ AI. Talking about the application of AI, so application हर जगह है, whether it is healthcare, education, finance, e-commerce, robotics, transportation, security, there is no limit. यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं in detail कि
in each and every domain, wherever it is possible to integrate the AI. In today's system, we are using that. Moving to the next topic, that is the intelligent agents. What are the concepts and characteristics we are going to start now? The what is intelligent agent? So intelligent agent is nothing but it is an entity. Yes, it is an entity that perceives its environment through the sensors and acts upon that environment through the actuator. देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी मशीन है दैट इज देयर इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट, वो अपने एनवायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन को अपने अंदर परसीव करेगी, वी अंडरस्टैंड करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज बॉर्न इन इंडिया एंड अ चाइल्ड इज बॉर्न इन यूएस. सो अगेन इंडिया के कल्चर के हिसाब से वो चाइल्ड क्या होगा, नर्चरिंग होगी उसकी. एंड यूएस में जो चाइल्ड बॉर्न है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिज और हर एनवायरमेंट, वहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से उसकी नर्चरिंग होगी. सो इफ द एनवायरमेंट इज डिफरेंट, द परसीविंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड द नर्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन और एजेंट विल बी डिफरेंट. सो द सेम थिंग इज रिटन हेयर कि सेंसर्स के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन को परसीव करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट एंड एक्ट करता है उस एनवायरमेंट पे जो भी उसके एक्चुएटर्स होते हैं. एक्चुएटर मतलब जिनके द्वारा वो एक्शन परफॉर्म करता है. सो एन एजेंट कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व द एनवायरमेंट. Again, like a small baby, it only observes the environment, make the decision and perform the action. वो अपने अंदर कोई डिसीजन परफॉर्म करता है एंड कोई एक्शन वो उसके एजेंट के हिसाब से या उस एनवायरमेंट परसीव के हिसाब से वो लेता है. ठीक है, इट लर्न्स एंड फ्रॉम द फीडबैक इन एडवांस एजेंट. अब हम एडवांस एजेंट में क्या देते हैं, एक टेक्निक होती है और एक मैकेनिज्म होता है ऑफ गिविंग द फीडबैक टू द एजेंट. एजेंट ऑलवेज आस्क आपसे कि वॉज माई सोल्यूशन करेक्ट, आर यू हैप्पी विद माई सोल्यूशन, और देयर इज एन ऑप्शन इन जीपीटी ऑल्सो टू लाइक एंड डिसलाइक द पर्टिकुलर solution which has been provided. So it is a kind of feedback mechanism that we are providing to the agent so that it can generate better solution from the next time onwards when we ask the same query to that agent. So that is the basic fundamentals of this topic. अब agent की तो बात कर ली, but intelligent agent का क्या मतलब है? एक intelligent agent वही होता है जो अपने आप में autonomy रखे, means without the human intervention वो अपने आप सारे काम हमारे लिए operate कर दे. तो it should be autonomous because okay, ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट आप कह लीजिए, एंड इट शुड बी रैशनल. रैशनल मतलब वो बायस नहीं होना चाहिए एजेंट रिगार्डिंग एनीथिंग, ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़े. देन देयर कम्स रिएक्टिविटी. द एजेंट रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट इन अ टाइमली मैनर. तो एजेंट क्या होता है, रिएक्टिव होता है. तो जो भी एनवायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से एक्ट करता है. लाइक द सेल्फ ड्राइविंग कार मूव कर रही है एंड विद द कार मूविंग continuously environment change हो रहा है and the agent is acting upon that. So that is the how reactive the agent is. Proactiveness, again the same thing कि गोल एकदम से सामने सेल्फ ड्राइविंग कार ने रेड लाइट दिखी, so how much proactive is the agent to take the decision that I need to stop my car. So that is the proactiveness. What is the learning ability कि एजेंट किस स्पीड से लर्न करता है, उसकी परफॉर्मेंस किस बेसिस पे इंप्रूव हो रही है ऑन दैट मेजर. अब बात करते हैं कि एजेंट कितने टाइप के होते हैं. हमने एजेंट के बारे में देखा, हमने इंटेलिजेंट एजेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट वन इज द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. सेल्फ ड्राइविंग कार का ही हम अगेन एग्जांपल लेंगे कि रेड लाइट दिखे, आई नीड टू स्टॉप. दिस इज ओनली द कंडीशन. इफ देयर इज रेड लाइट आई नीड टू स्टॉप, ओनली इफ एल्स, जो केवल करंट सिचुएशन को परसीव करके डिसीजन ले ले तुरंत. दैट इज द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. Now talking about the model based agent. Model based agent क्या होता है, अगेन विद द वेरी सेम एग्जांपल ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार से अगर हम समझाएं तो एनवायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है. मॉडल बेस्ड एजेंट अपने अंदर एक नॉलेज बेस भी रखता है एंड इट थिंक्स देन इट एक्ट्स. सिंपल रिफ्लेक्स में कोई नॉलेज बेस नहीं होता एजेंट के पास. सिंपल इफ एल्स कंडीशन है, अगर मुझे करंट सिचुएशन में रेड लाइट दिखी तो मुझे स्टॉप होना है. बट मॉडल बेस्ड एजेंट में क्या है, दैट कंटेन्स अ नॉलेज बेस इनसाइड ऑफ इटसेल्फ, और वो पहले चीज़ों को सोचता है बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट, बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस, एंड देन इट टेक्स सर्टेन एक्शंस कि मुझे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या एक्शन लेना चाहिए. ओके, नाउ देयर इज गोल बेस्ड एजेंट. नाउ व्हाट आर गोल बेस्ड एजेंट, दैट आर डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक गोल्स. अगेन सेल्फ ड्राइविंग कार का गोल क्या है, टू रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन. सो दैट इज द गोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंट. सो दैट इज द गोल बेस्ड एजेंट. नाउ कम्स द यूटिलिटी बेस्ड एजेंट. व्हाट आर द यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, दैट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी फंक्शन. दैट इज कि भाई डेस्टिनेशन तक तो पहुंचना है, बट द राइड शुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल टू द यूजर. मतलब वो अकॉर्डिंग टू द लीगल कंप्लायंस के हिसाब से होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट नॉट ओबिंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, वी आर जस्ट नॉट टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ द यूजर सेफ्टी. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ओके, लर्निंग एजेंट क्या होते हैं, जो अपनी जो भी उन्होंने वर्क करा गया है उनसे वो लर्न करते हैं टू बी बेटर इन द नेक्स्ट टाइम. सो दैट आर द लर्निंग एजेंट. आप सब में एक सेल्फ ड्राइविंग कार का कॉमन एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ हेयर कम्स
व्हाट आर द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। हम इतनी देर से बोल रहे हैं एजेंट एनवायरनमेंट को परसीव करता है जस्ट लाइक ह्यूमन और वो उसके हिसाब से एक्ट करता है। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट विच एन एजेंट कैन हैव। सो द फर्स्ट वन इज द फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट एंड द पार्शियली ऑब्जर्वेबल। क्या है, अगर एजेंट को कंप्लीट एक्सेस है, मतलब उसे पूरा एनवायरनमेंट एक बार में विजिबल हो पा रहा है, देन वी कॉल इट एज अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल। जैसे चेस गेम, हर एक प्लेयर को पूरा का पूरा कंप्लीट बोर्ड दिख रहा है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ fully observable environment. Now comes the partially observable environment. What will be the partially observable? कि driving a car, भाई मान लीजिए in the case of winter or even the case of summer, the driver is not able to see the complete or the entire road. वो केवल उतना पोर्शन रोड का देखता है which is coming in its view. तो ये अगेन एक एग्जांपल है partially observable environment का। एंड यहाँ पे एजेंट की जो नॉलेज बेस है, जो बेसिक इंटेलिजेंस है, दैट कम्स इनटू प्ले कि वो कितना ऑब्जर्व कर पाता है चीज़ों को। After this we have deterministic and the stochastic environment. Deterministic environment क्या है? The outcome of an action is completely predictable and depends only on the current state and the action taken. मान लीजिए आप कोई rubrics puzzle solve कर रहे हैं और any mathematical puzzle you are solving. So the outcome is defined, मतलब outcome ये होना चाहिए that is defined, और उसके हिसाब से हम action लेते हैं. So the output is deterministic, so that's why we are calling it as a deterministic one. Okay, now stochastic क्या होगा? Stochastic ये होगा कि आज the outcome of the action involves uncertainty or randomness, like the weather forecasting. A weather forecasting says that today is a rainy day, but it may or may not rain in your particular region. So that is a kind of stochastic environment the agent is perceiving. Then there are episodic and sequential environment. What are those? Episodic means each action is independent of the previous action. Previous action से current action का कोई लेना देना नहीं है. Suppose मान लीजिए agent has to take 10 actions in a row. So अगर उसने first decision मान लीजिए wrong लिया, so second, third, fourth can be right. So that are the classic example such as image classification. अगर एक image में थोड़ी गलती हो गई agent से, so ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरी image है और जो तीसरी image है उसको भी वो सही से classify ना करे. It may possible कि second and third image has been correctly classified by the agent. So this is an independent example of the episodic environment. Image classification. Sequential क्या है? Sequential है that every step matter, every action matter. आपका एक action आपके पूरे current outcome को बिगाड़ सकता है या फिर वो सुधार सकता है. फॉर एग्जाम्पल चेस में अगर आपका एक भी मूव गलत है तो द प्रोबेबिलिटी चेंजेस ओपोनेंट के विन करने की, आपके विन करने की. सो सिक्वेंशियल इन्वायरमेंट वो है जो फ्यूचर स्टेट को भी अफेक्ट करता है. आपका आज का डिसीजन विल अफेक्ट योर फ्यूचर डिसीजन. आप आज नहीं पढ़ रहे हैं सो यू विल डेफिनेटली फेल इन एग्जाम, बट आप इस वीडियो पर हैं सो यू आर डेफिनेटली लर्निंग इट, सो देन यू विल डेफिनेटली पास इन योर एग्जाम. ओके, सो दैट आर द सिक्वेंशियल इन्वायरमेंट. नाउ स्टैटिक एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट. व्हाट आर दोज? स्टैटिक मीन्स जो टाइम के साथ नहीं बदल रहे हैं, लाइक द क्रॉसवर्ड पजल. ऐसा नहीं है अगर इफ यू टेक 5 minutes टू आंसर दैट पजल सो पजल पूरा बदल जाएगा. नो, इट्स नॉट द केस. द बोर्ड विल बी सेम, द डाइस विल बी सेम, एवरीथिंग, नॉट द डाइस बट द वर्ड्स विच आर अरेंज दैट विल बी सेम, द होल एनवायरमेंट विल बी सेम. बट द इन डायनेमिक एनवायरमेंट व्हाट इज हैपनिंग? ऑटोनोमस ड्राइविंग आप कर लीजिए, सेल्फ ड्राइविंग कार अगेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल. कि डायनेमिक एनवायरमेंट में अगर आपने 5 मिनट तक स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया तो आप भी जानते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ डायनेमिक एनवायरमेंट एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू गिविंग यू कि एजेंट के डिसीजन के हिसाब से चीज़ें अगर बदल रही हैं कॉन्टिन्यूसली, सो दैट इज डायनेमिक. इफ नॉट देन दिस इज अ स्टैटिक. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस एनवायरनमेंट, सो डिस्क्रीट एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पे आपके एक्शंस को स्टेप बाय स्टेप लेना होता है, लाइक दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस. आपको एक अपनी क्या कहते हैं टर्न चलनी है एंड देन सामने ओपोनेंट वाला चलेगा एंड यू हैव टू टेक डिसीजन इन अ डिस्क्रीट मैनर कि अब नाउ आई हैव टू टेक द टर्न एंड देन नाउ आई हैव टू स्टॉप एंड देन अगेन आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल आई हैव टू टेक द इंटरवल. सो इट द एक्शन विच यू आर टेकिंग हैज अ सर्टेन टाइम इंटरवल गैप इन बिटवीन. सो दैट आर द बोर्ड गेम्स लाइक द टिक टैक टो एक्सेट्रा. बट इन द कॉन्टिन्यूस एनवायरनमेंट what is happening, you are actually not having time to take the gaps between your action. It is a kind of continuous action that you are taking, such as the robot motion control. I hope it is very much understood. This is only the basic. The last one is the static and the multi-agent environment. Static again जहाँ पे एक agent से आपका पूरा environment solve हो सकता है, such as the puzzle solving agent. अगर आप कोई Rubik's cube solve कर रहे हैं, so you don't need the other person to solve that particular cube. But अगर आप Ludo या chess जैसे games खेलते हैं which require the multiple persons involvement or the multiple agent environment, so that is again the multi-agent environment. Okay, now the next topic which we are having is the agent architecture. Now agent की हमने बात करी, intelligent agent, characteristics and type of environment हमने देखा. Now agent का architecture होता कैसा है, दिखता कैसा है, let us understand that. So agent architecture refers to the structure that defines how the agent is being built. Agent कैसे बना है, so that is what we are talking about in the agent architecture, including how it processes, percept and make decision and perform the action.
सो अगेन सेम बात जो मैंने आपको बताई थी, लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. वी ऑल नो दैट देयर इज अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो हर एजेंट के पास होता है. एजेंट उस एनवायरनमेंट से अपना डेटा क्या करता है, कलेक्ट करता है, एंड देन उस डेटा को मॉनिटर करके एनालाइज करता है. और आफ्टर द एनालिसिस जो एआई मॉडल होता है वो एक प्लान बनाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस एनवायरनमेंट हमने ये एनालाइज करा, एंड नाउ व्हाट विल बी माई प्लान फॉर द करंट एक्शन. तो उस एक्शन के हिसाब से करंट प्लान बनाना, एंड देन सिंपली उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देना. और उस एक्शन को कहाँ परफॉर्म करना, एनवायरनमेंट में परफॉर्म करना. आप अगर कोई चेस का गेम खेल रहे हो, सो यू आर गोइंग टू परफॉर्म दैट योर एक्शन इन टू दैट पर्टिकुलर चेस बोर्ड एनवायरनमेंट. नो, सो दैट इज द बेसिक आर्किटेक्चर वी कैन से ऑफ द एआई एजेंट. यही वो चीज़ लिखी हुई है. सेंसर एक्चुएटर एक एजेंट प्रोग्राम होता है अगेन, जहाँ पे वो एनालाइज एंड इंप्लीमेंट करता है डिसीजन मेकिंग लॉजिक को. एंड आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म क्या होता है, हार्डवेयर या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जहाँ पे आपका पूरा एजेंट रन होता है. ओके, सो दिस इज ऑल. नाउ हेयर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज व्हाट इज पीस. आप पीस से क्या समझते हैं, एंड पीस का in terms of self-driving car is really important to understand. Peace is nothing but an abbreviation for the performance measure, the environment, the actuator and the sensor. So Peace stand for these four terms. अब अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार के एग्जांपल से सिंपली इस बात को समझें तो सेल्फ ड्राइविंग कार में हमारे क्या क्या परफॉर्मेंस मेजर होते हैं, वो क्या क्या मतलब किस किस क्राइटेरिया पे हम उसके पर्टिकुलर एजेंट की परफॉर्मेंस को जज करेंगे. दैट सिंपली मीन्स अबाउट द परफॉर्मेंस मेजर. फर्स्ट थिंग इज सेफ्टी. अगर नो एक्सीडेंट का रिकॉर्ड आता है एजेंट का, दैट मीन्स एजेंट इज ट्रस्ट वर्दीनेस, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. इफ द एजेंट ओबेज द ट्रैफिक रूल्स, अगर वो रेड लाइट पे रुक रहा है, ग्रीन लाइट पे जा रहा है, ओके, एंड इन द येलो लाइट इट इज कमिंग इन द स्टेडी स्टेट, सो दैट मीन्स दैट द एजेंट इज परफेक्टली ट्रेन. सो दैट इज अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस मेजर फॉर अस. रीच डेस्टिनेशन, येस ऑब्वियसली सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाना एजेंट की जिम्मेदारी है. सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेजर. मिनिमम ट्रैवल टाइम, कम से कम ट्रैवल टाइम लगे, बेस्ट रूट से वो फाइंड करे, जस्ट लाइक इन द जीपीएस. सो पैसेंजर कंफर्ट हो, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि पूरे एकदम विदाउट ओबेइंग द स्पीड लिमिट वो एकदम तेज तेज चले रोड पे. सो दैट इज ऑल्सो नॉट परमिसिबल फॉर द एजेंट. एनवायरमेंट की यदि बात करें तो क्या क्या एनवायरमेंट होते हैं एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए. दिस इज वेरी बेसिक. रोड, हाईवेज, ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स, वेदर, डे एंड नाइट ड्राइविंग. एक्चुएटर की बात करें तो क्या क्या एक्शन हम सेल्फ ड्राइविंग कार में ले सकते हैं. एक्सेलरेटर दबा सकते हो, ब्रेक, गियर कंट्रोल, इंडिकेटर, हॉर्न, स्टीयरिंग. सो दीज ऑल आर द एक्चुएटर जिनसे हमारी कार एक्चुअल मूव करती है. एंड बहुत सारे सेंसर्स होते हैं हमारे पास. Radar is there, then GPS is there, speed and proximity sensor is there. So these all are the different kind of sensor that we are using. So P's is very important measure for the metric measure, we can say, for the agent. Now, what are the problem solving approaches to the typical AI problem that we are going to see here? So problem solving approaches means how an agent is moving from the initial state to the goal state. भाई कोई भी problem है, उसका एक initial state है, उसका एक goal state है. So how we are going to determine that particular thing? So basic component क्या आते हैं problem के. problem में क्या होता है, एक initial state होती है, एक goal होती है, उसके लिए हमें action perform करने होते हैं. State space means एक तरह का representation goal के लिए. मान लीजिए आप एक डाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो डाइस प्रॉब्लम के लिए आपको एक, अगर आपको डाइस बना के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अंडरस्टैंड करने में एजेंट को मदद करता है, दैट इज अ काइंड ऑफ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन दैट वी आर यूजिंग. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की बात करें तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता है, यहाँ पे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होता है, सर्च फॉर सोल्यूशन, एग्जीक्यूशन होता है. अगेन द सिंपल स्टेप टू अंडरस्टैंड. नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, दिस इज द मेन टॉपिक जिसकी हम बात करें. तो ये क्या करते हैं, एजेंट क्या करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये गोल बनाता है कि प्रॉब्लम बनाता है, इट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, सर्च करता है कि सोल्यूशन, अगर उसे पास्ट अपने नॉलेज बेस से कोई सोल्यूशन मिल पा रहा है देन इट इज वेरी गुड. एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शन सीक्वेंस वो कर पाता है. सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ईच ऑफ द एक्शन इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है. डोंट वरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का कंसेप्ट आगे यूनिट्स में आएगा इन वेरी डिटेल. सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ थिंग वी कैन से. एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, अगर हम एआई अप्रोचेस की बात करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करता है. तो एआई जैसे प्रॉब्लम की अभी हमने बात करी, तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है जैसे फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ. अगर हमें दो लोकेशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है, दैट इज अ राउट फाइंडिंग प्रॉब्लम विच इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ योर गूगल मैप्स, जो कि आपको बेस्ट रूट सजेस्ट करके देता है इन द मिनिमम टाइम यू कैन गो देयर. वाटर जग प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अभी हम डिटेल में समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज वाटर जग प्रॉब्लम. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, आपके पास ना दो जग हैं, एक आपका बड़ा जग है एंड वन इज द स्मॉल जग. कंडीशन क्या है, अच्छा पहले कैपेसिटी की बात कर लेते हैं. कैपेसिटी पहले जग की 4 लीटर है, दूसरे जग की 3 लीटर कैपेसिटी है. नाउ कंडीशन क्या है कि आप एक जग को आइदर कंप्लीटली फिल कर सकते हो या उसको मतलब एम्प्टी फिल कर सकते हो, लाइक फ्रॉम योर हैंड्स. अगर आप इनिशियली एक जग में वाटर पोर कर रहे हो, सो यू कैन ओनली फिल दैट जग फुल.
टू इट्स फुल कैपेसिटी, आप पार्शियल उसे फिल नहीं कर सकते। दैट डजेंट मीन कि अगर आप आप एक जग के फुल कैपेसिटी से अगर दूसरे जग में डाल रहे हो, सो देन इट कैन हैपन, लाइक अगर वो पार्शियल फिल ही होता है, इट इज अलाउड, बट फ्रॉम योर हैंड्स यू कांट पार्शियली फिल दैट पर्टिकुलर जग। सो अब हमारा टारगेट क्या है इसमें, ये एक प्रॉब्लम है बहुत फेमस कि 4 लीटर का जग है, 3 लीटर का जग है, यू हैव टू मेजर 2 लीटर फ्रॉम दैट जग। और जग में कोई भी आपके पास वो नहीं है मार्किंग, जैसे आप प्रोटीन शेक के कप में देखते हो ना, देयर आर मार्किंग कि आप इतना इतना पूरे जग में मार्किंग हो रखी होती है, दिस लीटर, तो यहाँ पे वो कोई मार्किंग नहीं है, सो यू कैन रियली मेजर दैट, यू हैव टू मेजर फ्रॉम दीज 2 जग्स ओनली। सो हमारे पास, मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ व्हाट विल बी द सोल्यूशन। आपको सबसे पहले पूरा फिल कर देना है 3 लीटर का जग, आपने 3 लीटर का जग पूरा फिल कर दिया, एंड देन इस 3 लीटर के जग को पूरा आपने डाल दिया 4 लीटर में। ओके, नाउ 4 लीटर में अगर आपने 3 लीटर डाला, सो ये जग कहीं यहाँ तक भरा होगा, है ना, एंड द 1 लीटर स्पेस इज स्टिल एम्प्टी इन दिस जग। अब आप क्या करो, 3 लीटर के जग को दोबारा भरो। 3 लीटर के जग को जब आप दोबारा भरोगे, देन आपका ये जो 1 लीटर का गैप है ये फिल हो जाएगा, एंड 3 लीटर वाले में जितना वाटर बचेगा दैट इज 2 लीटर। ओके, नाउ दिस इज आर टारगेट एंड इट इज अचीव्ड। हमें एक जग में, किसी भी एक जग में 2 लीटर वाटर लाना था, और हमने स्मॉल जग दैट इज 3 लीटर कैपेसिटी वाले जग में हम सक्सेसफुल हो गए हैं 2 लीटर कैपेसिटी वाटर मेजर करने का। ओके, सो वट एवर इज लेफ्ट इन द 3 लीटर, इट इज द 2 लीटर कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो बस ये सिंपल सी है हमारी वाटर जग प्रॉब्लम, एंड द गोल इज अचीव्ड। यहीं यहाँ पे ब्रीफ में लिखा रखा है, यू कैन ऑलवेज रेफर दैट इन द नोट्स प्रोवाइडेड। ओके, अगेन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व होती हैं स्ट्रैटेजीज। ओके, now coming on to the next topic of, or we can say the next unit of AI, that is the problem solving and the search strategies। यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन द ब्रीफ हम देखेंगे इन वेरी डिटेल कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं एंड हाउ दे आर टैकल्ड। सो अगेन सेम चीज़ लिख रखी है यहाँ पे। प्रॉब्लम में क्या होता है, एक इनिशियल स्टेट होती है, गोल स्टेट होती है, आप सारी स्टेट्स को एक बार पूरा एनालाइज करते हो, वही कहलाता है आपका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। आप उन स्टेट्स पे कुछ एक्शन लेते हो, एंड आपका हर पाथ के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ कॉस्ट होता है, जैसे आपका वेटेड ग्राफ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट इन द डेटा स्ट्रक्चर। वेटेड ग्राफ में हर एक नोड के तक जाने के लिए कुछ वेट्स असाइन होता है, तो कुछ कॉस्ट होती है। सो उस पाथ की कॉस्ट को भी वो कंसिडर करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और उनकी बेसिस पे कुछ हमारे पास सर्च स्ट्रैटेजीज हैं दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सर्च स्ट्रैटेजीज की बात करें, सो देयर आर वेरियस सर्च स्ट्रैटेजीज, एंड बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट वन इज द अनइन्फॉर्म्ड सर्च, एंड द सेकंड वन इज द इन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड मानी ब्लाइंड सर्च, एंड इन्फॉर्म्ड मीन्स ह्यूरिस्टिक सर्च। नाउ अनइन्फॉर्म्ड मीन्स that they does not use any domain knowledge, मतलब AI के पास पहले से अपना कुछ नॉलेज बेस या पास्ट एक्सपीरियंस कह लीजिए कुछ नहीं होता है। ओनली ड्यू टू द करंट स्टेट, मतलब जो भी उसके पास करंट सिनेरियो है उसको बेस बना के इट स्टार्ट परफॉर्मिंग द सर्च। अब इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदे क्या है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी ब्रूट, और हो सकता है आपको पहली बार में ही वो सही स्पेस मिल जाए, सही आपको गोल मिल जाए। और नुकसान क्या है कि मान लीजिए आपके गोल सबसे लास्ट नोड पे रखा हुआ है, एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन ट्रेवर्सिंग ऑल पॉसिबल नोड, जबकि वो रास्ता बिल्कुल सीधे सीधे आपको अचीव हो सकता था। सो दैट इज अगेन अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ सर्च। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में आपकी 2 मोस्ट पॉपुलर सर्चेज आती हैं, दैट इज योर ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड योर डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में बात करते हैं, दैट इज अ BFS। तो BFS क्या करता है, आपके ट्री लेवल को नोड बाय नोड एक्सप्लोर करता है। ओके, इन द डायग्राम आई विल शो यू, डोंट वरी। DFS में अगर बात करें, डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो क्यू है और FIFO ये यूज करता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। सो अगेन दिस इज अ एल्गोरिथमिक पार्ट, इट इज नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द वेटेड ग्राफ। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज क्या है, क्या ये BFS कंप्लीट होता है? येस, इट इज वेरी मच कंप्लीट। क्या ये ऑप्टिमल होता है? येस, अगर स्टेप इक्वल है तो दिस इज ऑप्टिमल। टाइम स्पेस क्या होता है, स्पेस स्टेट क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे, विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स। नाउ एग्जाम्पल की यदि बात करें, तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर हमें निकालना हो इन एन अनवेटेड ग्राफ, आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर वो ग्राफ अनवेटेड हो और वहां पे हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो, सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। DFS की यदि बात करें, तो DFS इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पे एक ब्रांच आपकी कंप्लीटली एक्सप्लोर होगी बैक ट्रैक करने से पहले, और जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे दैट इज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर विच इज द LIFO और द रिकर्जन। नाउ प्रॉपर्टीज की यदि बात करें, तो प्रॉपर्टीज क्या है, क्या ये कंप्लीट होता है? नहीं, दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट ऑप्टिमल। टाइम स्पेस को अभी हम देखते हैं। सो थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ में समझाया, अब हम डिटेल में जाते हैं कि BFS एंड DFS क्या है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। तो हम कह रहे थे BFS कंप्लीट है, ये हर एक पर्टिकुलर लेवल के सारे नोड्स को एक साथ एक्सप्लोर करता है। तो मान लीजिए ये ट्री है और ये हमारा लेयर 0 है, दिस इज लेयर 1 एंड दिस इज लेयर 2, वी ऑल नो दैट। अब लेयर 0 पे 0 नोड एक्सप्लोर हुआ, देन इट गो टू 1, 1 के बाद इट गो टू 2 एंड 2 के बाद इट विल गो टू 3। तो एक लेवल के सारे नोड इसने एक्सप्लोर करे, लेवल 1 के इसने सारे नोड एक्सप्लेन करे, 1 2 एंड 3, एंड आफ्टर लेवल 1 इट विल गो टू
लेवल 2, 4, 5, 6 एंड 7। तो सारे लेवल के सारे नोड ये ऐसे एक्सप्लोर करता जाएगा। मान लीजिए अगर हमारा गोल था 4, तो हम डायरेक्टली 4 तक नहीं जा सकते थे वाया 1, हमें 1 के बाद 2 को भी एक्सप्लोर करना पड़ता है एंड 3 को भी एक्सप्लोर करना पड़ता। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज डिसएडवांटेज वी कैन से इन टर्म्स ऑफ द ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या आएगा आपके पास, इट विल नॉट एक्सप्लोर ऑल द नोड्स ऑफ द सेम लेवल। ये सारे नोड्स के लेवल को एक्सप्लेन नहीं करेगा और एक्सप्लोर नहीं करेगा। इट सिंपली फ्लो इसका क्या रहेगा, डीएफएस का 0 से 1 गया, 1 से 4 गया और 1 से ये डायरेक्टली और डेप्थ में जाएगा। अब 4 के बाद ये और डेप्थ में नहीं जा सकता, सो ये बैक ट्रैक करेगा टू 1। अब 1 के कौन कौन से नोड रह गए एक्सप्लोर करने, केवल एक रह गया 5। क्या 5 के नीचे कोई और डेप्थ पर मैं जा सकता हूँ? नो। सो देन अगेन बैक ट्रैक करेगा टू 1, देन अगेन 1 से 0, देन 0 से 2, 2 से 6, 6 के बाद डेप्थ नहीं है, बैक ट्रैक, 2 के बाद और नोड नहीं है, बैक ट्रैक, 2 से अगेन और 1, 3 एंड देन इट विल गो टू 7। सो हमारे पास अगर हमारा 4 गोल है तो हमें बीएफएस में 2 और 3 को भी एक्सप्लोर करना पड़ता, बट डीएफएस में हम 0 से 1 से सीधा हम 4 को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीएफएस एंड डीएफएस। आई होप नाउ द क्लियरिटी इज मोर क्लियर। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करें तो बी स्टैंड फॉर द ब्रांचेस एंड डी स्टैंड फॉर द डेप्थ। सो बी की पावर डी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है बीएफएस में एंड सेम इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम डीएफएस की बात करें तो डीएफएस में हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगती है दैट इज बीएम, और यहाँ पे एम का मतलब है मैक्सिमम डेप्थ। बीएम हमेशा जो एम होता है दैट इज मैक्सिमम डेप्थ। जो आपका डीएफएस एक्सप्लोर करता है हर एक नोड से वो देखेगा कितनी मैक्सिमम डेप्थ तक मैं जा सकता हूं एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग दैट मैक्सिमम डेप्थ वो आपका कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसकी मैक्सिमम डेप्थ में। दैट्स वाई यहाँ पे डी की जगह हमने एम मेंशन कर रखा है। सो दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीएफएस। ओके, आफ्टर दिस one new search is there, that is the iterative deepening depth first search, that is the IDDFS approach। अब IDDFS approach क्या करती है, ये कंबाइन कर देती है आपके BFS को एंड DFS को। सो आइटरेटिव क्या करती है, बेनिफिट्स ऑफ बोथ बीएफएस एंड डीएफएस, मतलब डीएफएस की तरह ये पूरी डेप्थ का ध्यान रखेगी एंड बीएफएस की तरह ये क्या होगा, कंप्लीट होगी। मतलब डीएफएस में क्या एडवांटेज हमें मिल रहा था कि मेमोरी एफिशिएंट है, हमें सारे नोड्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे मेमोरी एफिशिएंसी ये दिखाएगा लाइक डीएफएस एंड कंप्लीट एंड ऑप्टिमल होगा लाइक बीएफएस। सो आईडीडीएफएस प्रेफर होता है जब आपकी डेप्थ ऑफ सोल्यूशन जो होती है आपकी अननोन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर सिंपल आपको एक न्यूमेरिकल या फिर एक क्वेश्चन से समझाऊं तो मान लीजिए हमारा जो गोल है दैट इज सी, मान लीजिए सी इज आर गोल, और अब हम आईडीडीएफएस का यूज करते हैं। फॉरगेट अबाउट आईडीडीएफएस, सबसे पहले हम ब्रेडथ फर्स्ट सर्च का यूज करते हैं। सो बीएफएस में हमारे पास क्या आएगा, ए को एक्सप्लोर करेगा, देन बी को, देन सी को, एंड सी हमारा गोल है तो यहाँ पे अचीव हो जाएगा। यस, इन दिस केस इट इज क्लियर। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करेगा, ए से बी जाएगा, बी से डी, देन डी से, देन अगेन ई इट विल गो, देन ई से एफ, देन एफ से जी, एंड देन जी से दोबारा बैक ट्रैक करके देन लास्ट में हमारे पास सी आएगा। आईडीडीएफएस क्या कहता है, आईडीडीएफएस कहता है कि हर एक डेप्थ वाइज आप सबसे पहले तो अपना वो लगाओ, डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाओ, तो हर एक लेवल वाइज आप लगाओ। जैसे लेवल वाइज बीएफएस से इसने कंबाइन करा लेवलिंग वाला कंसेप्ट, और डेप्थ वाला कंसेप्ट इसने डीएफएस से कंबाइन करा। सो सबसे पहले हम ग्राफ पे लेवल्स बना लेंगे, तो ये हम बीएफएस में ऐसे काम करते थे लेवल बनाने के। अब ये कह रहा है कि आप हर एक लेवल पे, दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1 एंड दिस इज लेवल 2, तो हर एक लेवल पे आप डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करो। डेप्थ फर्स्ट सर्चेस आप मैक्सिमम डेप्थ देखो उसकी, तो ए से बी हम गए, देन बी से आप अगेन सी पर भी जाओगे। सो दैट इज अगेन व्हाट इज आईडीडीएफएस, तो यहाँ पे आपको गोल जल्दी अचीव हो जाएगा। इन द केस ऑफ बीएफएस ऑल्सो हमें इतने ही नोड्स एक्सप्लोर करने पड़ रहे थे, बट दैट इज लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर एग्जांपल ओनली जो मैंने यहाँ पे लिया है। आपको अभी नहीं दिख रहा है डिफरेंस बिटवीन बीएफएस एंड आईडीडीएफएस, बट अगेन इट इज रियली वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग ऑल द नोड्स। ओके, now the next topic that we are going to start is the heuristic and optimization. So heuristic function क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आती है। heuristic function क्या होता है, it basically helps us to estimate the cost to reach the goal from a node n। ऐसे ही समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, मान लीजिए दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज आर एंडिंग पॉइंट, दिस इज आर गोल, और बीच में हमने कहीं एज्यूम कर दिया दैट देयर इज सम पॉइंट n जहाँ तक हमें रीच करने, अगर हम चले गए n तक, देन वी कैन एस्टिमेट द मीन्स कॉस्ट ऑफ रीचिंग टू द गोल। मतलब ऐसा होता है ना, अगर हम रास्ते में हैं एंड हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर हम पहुंच गए, सो वी कैन एस्टिमेट फ्रॉम देयर कि अब हमारे गोल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ओके, सो एक सिमिलर सा कंसेप्ट यहाँ पर भी चलता है कि एन तक रीच कर गए अगर हम, तो गोल तक रीच करने में कितना हमें टाइम लगेगा। सो एन तक जी में अगर हम अपनी कॉस्ट एस्टिमेट कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, अब वो जो आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, जो आपका अंदाजा है, मान लीजिए दैट इज ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले से प्री बिल्ड नॉलेज है आपकी, दैट इज कैन बी ऑफ एनी रीजन। तो एआई का भी कोई एक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक पाथ नहीं है कि वो ह्यूरिस्टिक नॉलेज उसने कैसे अजम्पशन लिया, ये नंबर कहाँ से आया या कैसे वो उसने एज्यूम करा. सो दिस इज व्हाट द ह्यूरिस्टिक फंक्शन मीन्स. दिस इज कंसिडर्ड एज द HN. ठीक है. सो दिस इज द ह्यूरिस्टिक फंक्शन. तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो सकता है राउट फाइंडिंग में, जैसे ग्राफ में अगर आप माने पॉइंट ए से पॉइंट अप गोल तक आप एक ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस निकालते हैं, तो इस ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस को आप एक स्ट्रेट पॉइंट मान सकते हैं जो कि ग्राफ में आप मेजर कर सकते हैं आसानी से स्केल रख के. सो वो एक आपका अजम्पशन पॉइंट हो सकता है. सो देयर कैन बी मल्टीपल अजम्पशंस, आप कह सकते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन के बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं जिस हिसाब से आप उस वैल्यू को मेजर करते हैं. सो नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स आप निकाल सकते हैं. देयर आर मल्टीपल एंड न्यूमरस वेज ऑफ फाइंडिंग द ह्यूरिस्टिक फंक्शन. अच्छा, अब इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज क्या है कि अगर ह्यूरिस्टिक सही निकला सो इट कैन बी अ बोन. मतलब आपका जो ह्यूरिस्टिक सही निकला तो आपने डायरेक्टली उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप अपने गोल तक तुरंत पहुंच गए. बट ऐसा भी होता है ना कि रास्ते में हम अगर किसी से रास्ता पूछते हैं, अगर उसे खुद रास्ता नहीं पता है तो वो हमें और उल्टा कंफ्यूज कर देता है. अगर हम नहीं पूछते रास्ता सो वी कुड हैव रीच द डेस्टिनेशन, बट नाउ वी आर स्टिल कंफ्यूज कि वेयर वी शुड गो. तो ह्यूरिस्टिक का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो आपको गलत रास्ता अगर बता दिया, या फिर वही वाली बात कि अगर उसने गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी तो यू कैन बी drastically confused in that case. So this is a disadvantage of the heuristic also. अब इसके बेस्ड पर ना कुछ सर्चेस आती हैं that are really important for the exam point of view. The first one is the greedy best first search. अब best first search क्या करती है, ये केवल heuristic वैल्यू का इस्तेमाल करती है. अब आप ग्राफ में अगर हम सीधा एग्जाम्पल से बात करते हैं, नो मोर बकवास, यहाँ पे ये सारे ग्राफ दी गए हैं. अब यहाँ पे जो ग्राफ हैं, जो ग्राफ के जो नोड्स पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज, जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज जो हैं जो हमें ग्राफ पे लिख के दी गई हैं. और यहाँ पे टेबल में हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं जो कि मैंने हर नोड पर भी रेड पेन से लिख रखी हैं. व्हाट आर ह्यूरिस्टिक वैल्यू, कि उस पर्टिकुलर नोड से, जैसे S की वैल्यू 13 है तो मतलब S से गोल तक रीच करने की वैल्यू 13 ह्यूरिस्टिक हो सकती है. दैट इज द वैल्यू. तो ऐसे करके पूरा टेबल आपको प्रोवाइड करा जाएगा इन द एग्जाम फॉर द ह्यूरिस्टिक वैल्यू. अब यहाँ से क्या करना है, वी डू नॉट हैव टू कंसिडर दीज वैल्यूज विच आर रिटन ऑलरेडी इन द ग्राफ. मतलब जो 3 2 4 1 ये जो लिखी हुई है ग्राफ में ऑलरेडी, इनको हमें यूटिलाइज नहीं करना है बिकॉज दिस इज अ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च. और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या करती है, इट सेलेक्ट्स द नोड दैट अपीयर्स क्लोजेस्ट टू द गोल. मतलब ये केवल ह्यूरिस्टिक के बेसिस पे करती है, बेस्ड ऑन द ह्यूरिस्टिक वैल्यू. ये एक्चुअल वैल्यू को कंसिडरेशन में ही नहीं लेती है. तो यहां से हम क्या करेंगे, केवल ह्यूरिस्टिक पे ध्यान देते हैं. S से A तक वैल्यू कितनी है 10, B कितनी वैल्यू दिखा रहा है 4, तो हम S से क्या चूज करेंगे, B चूज करेंगे. अब B से E तक कितना दिखा रहा है 8, F से इट इज 2, तो हमने क्या चूज करा 8 और 2 में से मिनिमम वाला, तो F चूज कर लिया. अब F से I कितना दिखा रहा है 9, G क्या है गोल ही है 0, तो हमने F से 2 सर्च कर लिया. सो हमारा जो पाथ है वो क्या बन गया, S से B, B से F एंड F से G. अब ये इस केस में बेस्ट अगर है तो इट इज़ गुड, बट ह्यूरिस्टिक फंक्शन से हमेशा कैलकुलेट करना डज नॉट गारंटी द ऑप्टिमैलिटी ऑफ द सोल्यूशन. ये हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें देगा, नो, इस बात की कोई भी हमारे पास गारंटी नहीं है. ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या है, फास्ट होता है, बहुत जल्दी से हमने कैलकुलेशन कर ली. और कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि लाइक हाउ दिस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इज कंप्लीटेड इन वेरी फ्यू टाइम बाय दिस पर्टिकुलर एजेंट, तो दैट इज अगेन वर्किंग ऑन द ह्यूरिस्टिक वैल्यू. उसके पास कुछ प्री डिफाइंड अजम्पशंस ह्यूरिस्टिक फंक्शंस हैं जिसकी मदद से वो डायरेक्ट गोल पर पहुंचता है विदाउट एक्सप्लोरिंग द अदर नोड्स ऑफ द ग्राफ. सो ऑप्टिमल नहीं है, ये फास्ट तो है लेकिन ऑप्टिमल नहीं है. और ये लोकल मिनिमम में भी फंस सकता है बिकॉज इट इज ह्यूरिस्टिक. अगर इन्फॉर्मेशन गलत हो गई तो ये फंस भी सकता है बहुत बुरी तरीके से. सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस. Next, another important topic from the exam perspective, for the semester exam perspective, is the A search algorithm, or we can say the A star search algorithm, जो कि most important and optimal search solution है. अब देखिए improvement क्या हुआ in this very simple terms. पहले हम केवल function को क्या ले रहे थे, heuristic value, केवल हम heuristic value पे depend हो रहे थे. बट अब हम क्या करेंगे, उस नोड की एक्चुअल वैल्यू को भी कंसिडरेशन में लाएंगे. मतलब जो नोड पे जो एक्चुअल वैल्यूज लिखी हुई हैं वो वैल्यू प्लस द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, हम दोनों को मिलाकर हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमें इस नोड पर जाना चाहिए और क्या हमें इस नोड पर नहीं जाना चाहिए. इसके अगेन एडवांटेजेस क्या होंगे, अब हम एक्चुअल वैल्यू को भी कंसिडरेशन ले रहे हैं तो अजम्पशन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, ह्यूरिस्टिक की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएंगी, जिससे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलने में मदद होगी. सो ये एक बेसिक कंसेप्ट है ए स्टार का जो कि एक्चुअल वैल्यू को भी कंसिडरेशन में लाता है. क्या ये कंप्लीट है, यस. क्या ये ऑप्टिमल है, यस, ओनली इफ ह्यूरिस्टिक हमारा एडमिसेबल हो. अब एडमिसेबल का क्या मतलब होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एडमिसेबल ह्यूरिस्टिक को हम तब कहते हैं जब हमारा जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट होता है, मतलब जितना हमने अनुमान लगाया होता है गोल तक पहुंचने का, उससे उस अजम्पशन से हम कम में उस गोल पर पहुंच जाते हैं. सो एच स्टार क्या है, हमारी एक्चुअल
अजम्पशन कॉस्ट है, जो हमने एक्चुअल कॉस्ट लगाई हुई है कि भाई आप मान लीजिए 16 कॉस्ट में आप गोल तक पहुंच जाने चाहिए। दिस इज द एच स्टार एन। अब एच एन क्या है कि अगर हम 15 में पहुंचे हैं, सो दैट इज आर एच एन, और इस केस में एच एन जो है वो लेस है, 15 इज लेस देन 16, सो यहाँ पे हमारा कहेंगे कि ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है। बट मान लीजिए हम 17 या 18 में गोल में पहुंच रहे हैं, सो दैट इज नॉट एडमिसिबल। ओके, सो अगेन वही बात लिखी हुई है कि ट्रू कॉस्ट को कभी भी ओवर एस्टिमेट ना करें। ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमेशा ट्रू कॉस्ट से कम रहे, तो और द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एनी गिवन स्टार्ट ऑफ द गोल। सो दिस इज आवर बेसिक गोल। ओके, नाउ ये सिंपल सा एग्जांपल से अपनी बात कहते हैं, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ए स्टार एल्गोरिथम वेरी क्लियरली। आपको अगेन एक टेबल दिया जाएगा जिसमें सारी स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिखी होगी, जैसे आई हैव रिटन इन द रेड पेन, और यहाँ से जो आपके ग्राफ पे भी कुछ वैल्यूज होंगी दैट आर द एक्चुअल वैल्यू। हमारा गोल है, ये हमारा एस है, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज आर गोल विच इज आर गोल पॉइंट और विच इज आर डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे आई यूज अ डिफरेंट पेन, एंड यहाँ से 5 मान लीजिए स्टार्ट से, सबसे पहले स्टार्ट से कितने नोड निकल रहे हैं, एक तो ए निकल रहा है और एक सीधा गोल जी निकल रहा है। बट हम क्या सीधा गोल पर जाएं? नहीं, लेट अस कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द ए स्टार एल्गोरिथम, कि यहाँ पे सबसे पहले हमारी दो चीज आई, ए आया और जी आया एस से। तो अब ए तक पहुंचने की वैल्यू देखिए, दैट इज 3 होगी क्या? नहीं, दैट विल बी 1 + 3। अब हम 1 को भी कंसिडर कर रहे हैं ना, तो आई विल राइट इन ग्रीन पेन कि जो भी हमारे पास ए स्टार से वैल्यू आई है, तो ए तक पहुंचने का कितना वैल्यू है? 4। जी तक पहुंचने का कितना वैल्यू है? 10 + 0, दैट इज अगेन 10। डिड यू अंडरस्टैंड? 0 इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू। अगर हम बेस्ट फर्स्ट सर्च से करते तो हम 3 और 0 में कंपैरिजन करते, बट अब हम किस में कंपैरिजन कर रहे हैं? 1 + 3 और 10 + 0 में। एक्चुअल कॉस्ट को हम साथ लेकर चलेंगे हर एक नोट पे, ठीक है। अब जी से तो आगे एक्सप्लोर करने का फायदा नहीं है, बिकॉज दिस इज द गोल। लेकिन क्या हम सीधा एस से गोल पर जा पा रहे हैं? नो, बिकॉज हमें दिख रहा है कि 4 इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे 10 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 4 वैल्यू आ रही है। यही फायदा है। अगर हम मान लीजिए बेस्ट फर्स्ट सर्च करते तो हम सीधा 0 देखकर गोल पर पहुंच जाते, बट उसकी कॉस्ट हमारी 10 लगती, बट अब कितनी लगेगी? लेट्स सी। तो ए से अब हम ए तक पहुंच गए, अब हम ए से देखते हैं, ए से जाने के कितने रास्ते? बी एंड सी। अब ए बी तक पहुंचने का क्या कॉस्ट आ रहा है? 4 + 2 दैट इज 6, ठीक है। एंड सी तक पहुंचने का कितना रास्ता आ रहा है? 2 + 1 दैट इज 3। अब सी से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। सी से एक गया डी तक, एंड सी से गया जी तक। तो सी डी तक पहुंचने के कितने रास्ते? दैट इज हाउ मच द वैल्यू है? 9। एंड सी से जी तक पहुंचने का इट इज 7। तो ऑब्वियसली 9 7 में क्या चूज करेंगे? 7, नो। सो हमारे जो बेसिक पाथ बना वो क्या करा? फ्रॉम एस टू सी टू जी। अब जरा इसकी कॉस्ट अगर एक्चुअल कॉस्ट में अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब अगर हम इसे, लेट मी क्लियर दिस अप अ लिटिल बिट, यस। सो अगर हम देखें अब कि जरा एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करना, यहाँ तक एस से गोल तक अगर डायरेक्ट जाते तो 10 लगता, और एस से गोल तक यहाँ तक गए तो कितना लगा? 1 + 1 + 3 + 4 विच इज लेस देन 10। 4 5 6 7 8 9 9 में हम पहुंच गए गोल पर। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ए स्टार ओवर बेस्ट फर्स्ट सर्च। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, एंड दिस इज द ओनली फॉर्मूला। FN = GN + HN, और ग्रीडी में केवल FN फंक्शन किसका होता है? ह्यूरिस्टिक का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ए स्टार एल्गोरिथम, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम क्या है? एक लोकल सर्च एल्गोरिथम है दैट मूव्स टुवर्ड्स द बेटर स्टेट ऑफ कंपेयरिंग द एनी नेबरहुड स्टेट। वर्किंग कैसे होती है? आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करिए, आप नेबर स्टेट तक जाइए बेटर वैल्यू के साथ, एंड अगर नो बेटर वैल्यू दिखती है तो वहाँ पे स्टॉप हो जाइए। अब इसके लिमिटेशन कुछ ये है, लोकल मैक्सिमम, प्लेटू, रिच प्रॉब्लम। देखते हैं इसको क्या होता है ये फ्रॉम द डायग्राम हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा गोल है सिंपली, एजेंट को एक भी मजल टाइप मेज टाइप का कुछ दे रखा है, पजल टाइप का, और एजेंट कहीं तो यहाँ पे है, मतलब करंट स्टेट एजेंट की ये है। एजेंट का टारगेट क्या है? ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुंचना। अब एजेंट यहाँ पे है तो उसको बेटर सोल्यूशन क्या दिखेगा? नीचे जाना या ऊपर जाना? एजेंट को क्या ट्रीट करा गया है? ग्लोबल मैक्सिमम। यू हैव टू गो टू अपवर्ड, मतलब ऊपर जाना इज अ गुड सोल्यूशन फॉर यू, एंड नीचे जाना इज अ डाउन सोल्यूशन फॉर यू। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, फॉरगेट अबाउट द नेबरिंग स्टेट, आपको क्या लगेगा कि मैक्सिमा कहाँ आने वाला है? ऑब्वियसली ऊपर जाके आप यहाँ पर आ गए, एजेंट यहाँ पे आ गया। एजेंट ने कहा दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमा, क्योंकि यहां से ये एक ऐसी पीक है जहां से लेफ्ट जाना भी बैड सोल्यूशन होगा, राइट जाना भी बैड सोल्यूशन होगा। सो क्या एजेंट कभी भी इस लोकल मैक्सिमा से बाहर निकल पाएगा? नो, एजेंट यहाँ पे फंस जाएगा और एजेंट डिक्लेयर कर देगा कि पूरे ग्राफ में यहीं पर ही ग्लोबल मैक्सिमा है। दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। अगेन, अगर एजेंट यहाँ पे फ्लैट रीजन पे पहुंच गया, या प्लेटू रीजन जिसे हम कहते हैं, तो क्या वो कभी भी हमारा फाइंड कर पाएगा ग्लोबल मैक्सिमा? नहीं। बेसिकली ऐसे ही अगर एजेंट कभी यहाँ शोल्डर पे पहुंच गया, शोल्डर मींस इट इज अ बेसिक फ्लैट रीजन जो कि आपकी कर्व के बीच में आ जाता है, तो अगर एक मिनट, अगर वो यहाँ पे पहुंच गया शोल्डर पे, सो क्या एजेंट कभी भी ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड कर पाएगा? नो। हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या होंगे? जब एजेंट की करंट स्टेट या तो यहाँ हो या यहाँ हो,
तो वो उस केस में ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड कर देगा। बट क्या ये हर केस में होगा कि एजेंट हमेशा इन्हीं दो सिचुएशन पर हो? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एजेंट यहाँ पर भी हो सकता है, एजेंट हमारा मैक्सिमम डीप पे भी हो सकता है, जहाँ से वो या तो फ्लैट पे फंस सकता है या लोकल मैक्सिमा पे फंस सकता है। तो यही लिखा हुआ है कि हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम की यही प्रॉब्लम है, लोकल मैक्सिमा पे फंसना, प्लेटू में फंसना, एंड रिज प्रॉब्लम उसकी है एक। ओके, सो ये तो हिल क्लाइंबिंग में तो बहुत सारे इश्यूज हैं इस एल्गोरिदम में, तो इसको सही भी करना होगा। सो हिल क्लाइंबिंग का एक एडवांस वर्जन है, दैट इज सिमुलेटेड एनीलिंग। सो अब डिस्कस करते हैं सिमुलेटेड एनीलिंग क्या होता है और हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर अस। नाउ वी ऑल हैव स्टडीड ऑलरेडी अबाउट द हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम? कि एजेंट है, एजेंट सपोज इज गिवन सम ऑफ द हिल्स एंड उससे ये टास्क है कि उसको ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड करना है विच इज़ दिस। बट एजेंट जो है दैट स्टिल कन्फ्यूजेस बिटवीन द रिजेस जो भी प्लेटूज आते हैं एंड लोकल मैक्सिमा जो आता है, उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है दैट व्हाट विल बी माई ग्लोबल मैक्सिमा नाउ, बिकॉज at after reaching the local maxima the agent think that this is only the my global maxima, और वो फिर जो नेबरिंग रीजन्स होते हैं जहाँ पे केवल डाउन स्लोप्स होती है वहाँ पर वो आइडेंटिफाई करके ग्लोबल मैक्सिमा पर रीच नहीं कर पाता है। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग विद द लोकल मैक्सिमा, द रिजेस एंड द प्लेटूज फॉर द हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम। सो सिमुलेटेड एनीलिंग एक कह सकते हैं हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, हम सिमुलेटेड एनीलिंग में सबसे पहले तो एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं विच आई हैव रिटन हेयर, और इस फॉर्मूले को हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। या तो प्रोबेबिलिटी हमें दो चीज़ें करवाएगी, या तो वो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट करवाएगी या हमारा सोल्यूशन रिजेक्ट करवाएगी, इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा ई बाई टी in the negative. Now what is delta E here? Delta E stands for the energy, क्या क्या एनर्जी है, एंड T is the temperature which is also known as the freedom. अब एक एक करके सारी टर्म्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक केस सिनेरियो लिया कि सपोज दिस इज आर ग्लोबल मैक्सिमा एंड दिस इज आर लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे व्हाट वी आर हैविंग इज कि मान लीजिए हमारा एजेंट इस समय लोकल मैक्सिमा पर है, दैट इज ऑन द स्मॉल हिल टॉप। अब टू रीच टू द ग्लोबल मैक्सिमा, जो कि हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम पे वो नहीं कर पाता था, व्हाट द एजेंट इज हैज टू डू कि वो यहाँ पे रीच करके सबसे पहले थोड़ा सा वो उससे नीचे उतरना पड़ेगा। द एजेंट हैज़ टू एक्सेप्ट सम ऑफ द बैड सोल्यूशन, और उन बैड सोल्यूशन को एक्सेप्ट करने के बाद ही वो ग्लोबल मैक्सिमा पे रीच कर पाएगा। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि एट द इनिशियल प्लेस एजेंट के पास बहुत सारी फ्रीडम है टू एक्सेप्ट द बैड सोल्यूशन ऑल्सो, क्योंकि अभी उसे लोकल मैक्सिमा से अगर ग्लोबल मैक्सिमा पे रीच करना है तो सबसे पहले उसे इस छोटी वाली हिल से उतरना पड़ेगा, मीन्स डाउन स्लोप विच इज अ नेगेटिव सोल्यूशन फॉर द एजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द इनिशियल फेज व्हाट द एजेंट हैज़ टू डू, इट हैज़ टू एक्सेप्ट द वर्स्ट सोल्यूशन ऑल्सो। सो इनिशियल फेज में जो टी यानी टेम्परेचर यानी फ्रीडम की वैल्यू जो होगी दैट विल बी वेरी हाई, एंड वी ऑल नो द बेसिक मैथ्स, इफ द डिनोमिनेटर वैल्यू इज वेरी हाई then the whole fraction is very low, and if the whole fraction is very low it means the negative value means a small negative number, means अगर हम मान लें कि डेल्टा ई बाई टी की वैल्यू मान लीजिए आपकी 0.1 आई, तो ई की वैल्यू आएगी ई टू द पावर माइनस 0.1। सो दिस विल बी द वैल्यू, हम मान के चल रहे हैं कि सपोज ये हमारी वैल्यू है इनिशियल फेज में। अब देखते हैं फाइनल फेज में क्या होगा। जब एजेंट हमारा फाइनल फेज में पहुंचेगा, यानी अब उसके पास नाउ एजेंट इज नॉट ऑन द हिल क्लाइंबिंग टॉप, वो अब टॉप पे नहीं है, द एजेंट इज समवेयर हेयर एट द वेरी बॉटम, क्योंकि ये अब फाइनल फेज है। तो अब फाइनल फेज में क्या होगा, फाइनल फेज में जो टी की वैल्यू होगी दैट इज अ फ्रीडम, अब एजेंट के पास फ्रीडम बहुत कम होगा। नाउ इट कांट एक्सेप्ट फर्दर बैड सोल्यूशन बिकॉज एजेंट ऑलरेडी बहुत रॉक बॉटम पे है इस समय। तो एट द फाइनल फेज जो फ्रीडम की वैल्यू होगी दैट इज वेरी लो, नाउ द एजेंट कैन नॉट एक्सेप्ट मोर बैड सोल्यूशन, and hence we are saying that the t value is really very small. Again applying the basic maths, if any denominator value goes very small, so the whole fraction becomes very large value, so that is e की power minus fraction of something very large value means very large negative value. Suppose the value we let's say it is 10. okay, so final phase में हमारी value क्या आई, suppose हम मान रहे हैं e की power minus 10. सो नाउ कंपैरिजन बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमारी थी ई टू द पावर माइनस 0.1 हमने एज्यूम करी थी ड्यू टू द वेरी लो फ्रैक्शन, एंड ई की पावर माइनस 10 हमने इन द फाइनल एक्सेप्ट करी थी। सो द वैल्यू ऑफ बोथ द फ्रैक्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0.9 एंड 0। सो ऑब्वियसली इनिशियल वाले की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सो वी विल बी एक्सेप्टिंग द इनिशियल सोल्यूशन, कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट हुई है दैट इज वो हुई है प्रोबेबिलिटी जब एजेंट ज़्यादा फ्रीडम ले पाएगा, एंड कंपेयर टू दैट कि वो एजेंट फाइनल वाले सोल्यूशन को रिजेक्ट कर देगा जब एजेंट बॉटम बिल्कुल उस पर है। सो दिस इज द कंक्लूजन। नाउ बाय दिस कंक्लूजन हमारा एजेंट जो है वो सक्सेसफुली रीच कर पाएगा टू द ग्लोबल मैक्सिमा। सो
after accepting the initial solution and rejecting the final solution. So this is all about the formula and the explanation for the simulated annealing. So now as you have understood the simulated annealing, so the concept and the acceptance formula is mentioned here. You can go through it. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम. अब कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें हमें बेसिकली बहुत सारे वेरिएबल डोमेन एंड कंस्ट्रेंट दिए गए होते हैं एंड उन कंस्ट्रेंट के हिसाब से हमें चीज़ों को इवेल्युएट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल सुडोको गेम है, तो सुडोको गेम में कुछ कुछ कंडीशंस आपके पास होती हैं कि आपके पास पर्टिकुलर स्क्वायर्स हैं एंड कंडीशन है कि सेम रो एंड सेम कॉलम में आपके पास सेम डिजिट नहीं आने चाहिए. सो जैसे वहाँ एक कंडीशन होती है, ऐसी बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे आई हैव अटैच वन प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम में क्या है, जैसे क्रॉस प्लस रोड्स इज डेंजर. तो इसमें क्या करना होता है, हमें हर एक वैल्यू को हमें एक नंबर असाइन करना पड़ता है और इस नंबर के बेसिस पे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है. ओके, बेसिकली क्रॉस प्लस रोड्स इज डेंजर, तो वो हमें एक क्रिप्टो अर्थमेटिक वे में हमें इसको प्रूफ करना पड़ता है. मतलब इन हर एक लेटर को एक डिजिट असाइन करके हमें इसको प्रूफ करना पड़ता है इन द मैथमेटिकल वे कि ये चीज़ हम सही लिखी हुई है या नहीं सही लिखी हुई है. इसमें कुछ कंस्ट्रेंट ये भी होते हैं कि पहला जो लेटर होता है, जैसे सी हो गया, आर हो गया एंड डी हो गया, वो क्योंकि हम 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं सबको, लेकिन जो सी आर डी, क्योंकि ये पहले पहले वर्ड्स हैं तो इनको हम 0 लेटर असाइन नहीं कर सकते हैं. में आपको क्रिप्ट अर्थमेटिक यानी बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, ये जो आपको दिए गए नंबर्स हैं इनको आपको कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स में असाइन करना है. तो एक एक करके देखते हैं इन्हें हम कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो लेटर दिए गए हैं CROSS और ROADS, फॉर एग्जांपल अब इनमें 5-5 लेटर हैं, बट आप देख सकते हैं जो इनका आंसर है DANGER, उसमें हमारे पास 6 वर्ड हैं. तो अब आंसर में अगर एक वर्ड एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम एज अ बोरो लेते हैं. तो सबसे पहले हम इसको प्रॉब्लम को जब स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो डी को हम सबसे पहले बोरो दे देंगे 1. तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 1 असाइन हो जाएगी. तो जहाँ जहाँ डी लिखा है वहाँ वहाँ मैं वैल्यू इसको 1 असाइन कर दूंगा. उसके बाद अब हम बिगेस्ट वैल्यू से असाइन करना शुरू करेंगे, यानी ये जो सी लिखा है इसको मैं पहले ट्राई करूँगा वैल्यू 9 देने का. अब अगर मैंने सी को वैल्यू 9 दी है तो मैं ये चाहूँगा कि 9 प्लस समथिंग मेरा कोई ऐसा आंसर आए ए का जिससे मैं आगे बोरो ले पाऊँ. तो 9 से अगर मैं आर को सपोज़ मैंने यहाँ पे सी को 9 दिया, अब मैं मान लीजिए आर को 8 देता हूँ. तो अगर जहाँ जहाँ आर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मैं 8 नंबर असाइन कर देता हूँ. तो 9 प्लस 8 विल बी योर 17. अब क्या मैं ए को 7 वैल्यू असाइन कर सकता हूँ? येस आई कैन. सो आई विल असाइन ए एज 7. अब मैंने ए को 7 असाइन करा, जहाँ जहाँ ए लिखा वहाँ वहाँ 7 असाइन कर दिया एंड आर की जगह पे सब जगह 8 मैंने असाइन कर दिया. अब यहाँ पे 9 प्लस 8 इज 7, 7 प्लस बोरो 1 इज डी, सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग. बट दैट कंडीशन आर इज 8 एंड अब मैं 8 प्लस क्या लिखूँ जो मेरा एन आ जाए. अब अगर आप ध्यान दीजिए 8 की वैल्यू अगर मैं 0 यहाँ पर पुट कर दूंगा तो 8 प्लस 0 विल बी अगेन 8, तो मैं एन को दोबारा 8 वैल्यू नहीं दे पाऊंगा. तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 की वैल्यू ओ को नहीं दे सकता. तो इसलिए मैं क्या करूँगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 6. अगर मैं 6 स्टार्ट करूँगा तो ऑब्वियसली 8 प्लस 6 कोई ना कोई एक बोरो आएगा जो मैंने सी और आर में बोरो नहीं दिया, सो आई कैन नॉट राइट 6 हेयर. तो मैं 8 में मेरे पास 2 ही चॉइस हैं, या तो मैं 0 रखूँ, नहीं ऑब्वियसली एक ही चॉइस है, क्योंकि अगर मैं ओ की वैल्यू 2 भी रखता हूँ तो मेरा एन जो होगा वो 10 आएगा, उसमें से मैं 0 एन को दूंगा और यहाँ पे मैंने बोरो लिया नहीं है सी और आर में, तो मैं ओ की वैल्यू को वो भी नहीं दे सकता. इसका मतलब है कि मैंने आर की वैल्यू जो ली है दैट इज़ रॉन्ग, और आर की वैल्यू रॉन्ग ली है तो मैं अब आर की वैल्यू 8 रखने की बजाय अब मैं आर की वैल्यू 7 ट्राई करूँगा. सो जहाँ जहाँ आर है आई विल असाइन देम एज 7. तो मैंने आर की वैल्यू को 7 असाइन करा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 7 लिखा. सो 9 प्लस 7 इज योर, सो 16 इज ए की वैल्यू अगर मैं 6 पास करूँ यहाँ पे, सो ए इज़, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ एंड यहाँ भी अगर मैं 6 लिखता हूँ देन ए विल बी योर 6. एंड अगर मैं अब यहाँ पे देखता हूँ कि आर मेरा 7 है और उसके बाद अगर मैं ओ की वैल्यू ऐसी क्या असाइन करूँ जो मुझे बिना बोरो के यहाँ पे लाऊँ, तो 7 के साथ मैं 2 असाइन कर सकता हूँ एंड 0 असाइन कर सकता हूँ. अगर मैं यहाँ पे 2 रख के देखता हूँ तो आर की वैल्यू, अगर मैं ओ की वैल्यू एज अ 2 रख के देखता हूँ तो एन की वैल्यू क्या मेरे पास 9 अवेलेबल है? नहीं, वो 9 मैं ऑब्वियसली सी को दे चुका हूँ. तो इसका मतलब मैं आर की वैल्यू यहाँ पे 7 भी नहीं दे सकता हूँ. तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे आर की वैल्यू 6 से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, तो पहले हमने 8 रख के देखा, इट इज़ नॉट वर्किंग, वी हैव ऑलरेडी सीन. सो नाउ अभी यहाँ पे हम आर की वैल्यू 6 रख के देखेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये वैल्यू ऑलरेडी आर को असाइन है. तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू हर जगह 6 हो तो 9 प्लस 6 विल बी और 15. एंड 15 में अगर मैं ए की वैल्यू को 5 असाइन करूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ वहाँ 5 असाइन कर दूँ. थोड़ा मैसी लग सकता है बट इट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन. एंड 15 को यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 9 प्लस 6 5 एंड देन 1. एंड देन अगर मैं आर की बात करूँ तो आर इज 6 प्लस something which will give me n. So 0
यानी ओ की वैल्यू में क्या ऐसी असाइन करूँ जो मेरे पास एन आए, तो मैं ओ की वैल्यू को असाइन करूँगा। हम देख लेते हैं 0, 2 और 3। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है जो मैं विदाउट बोरो ओ की वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तो 0, 2, 3 में पहले 2 के साथ ट्राई करा था, तो इस बार भी 2 के साथ ही चलते हैं। सो अगर मैं ओ की वैल्यू को 2 ही असाइन करूँगा, दिस इज कम्प्लीटली हिट एंड ट्रायल मेथड। तो 6 की वैल्यू 6 + 2 क्या 8 मेरे पास खाली है? यस, मैं एन की वैल्यू को 8 असाइन कर सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ वहाँ 8 मैं लिख दूंगा एंड ओ की वैल्यू को भी 2 कर देंगे यहाँ पे। नाउ 2 + 5 क्या मैं जी को 7 दे सकता हूँ? यस, आई कैन गिव जी एस 7। सो मैंने यहाँ पे जी को 7 दे दिया। नाउ अब मुझे एस की वैल्यू क्या देनी है जो मैं ई को भी दे सकूँ। नाउ आई हैव ऑप्शन बिटवीन 3 एंड 4 एंड 0। नाउ लेट अस कैलकुलेट। क्या मैं यहाँ पे अगर 3 रखता हूँ एस की वैल्यू, तो 3 + 1 गिव मी 4। चलो ट्राई करके देखते हैं। सो एस की वैल्यू यदि मैंने 3 रखी यहाँ पे, सो एस विल बी 3 एंड ई विल बी योर 3 + 1 इज़ 4। सो ई की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी एंड जहाँ जहाँ एस था वहाँ वहाँ मैं 3 रख देता हूँ एंड आई कैन सी कि मेरी जो इक्वेशन थी 3 + 3 इज़ 6, 3 + 1 इज़ 4, 2 + 5 इज़ 7, 6 + 2 इज़ 8, 9 + 6 इज़ 15 का 5 यहाँ, 1 बोरो एंड 1 इज़ हेयर। येस, द इक्वेशन इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग। तो अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज़ बन गई हैं वो हैं सी इज़ 9, दिस इज़ 6, 2, 3, 3, 6, 2, 5, 1, 3, 1, 5, 8, 7, 4, 6। तो ये सारी वैल्यू अब मैंने प्रॉपर्ली असाइन कर दी हैं विद द हेल्प ऑफ द रूल्स। और एक रूल यहाँ पे और भी था कंस्ट्रेंट कि जो भी पहली डिजिट होती हैं उनको हम कभी भी जीरो वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। सो विद ऑल दैट कंस्ट्रेंट वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. So now as you have understand the constraint satisfaction problem, this is the complete solution which I have written here. Now let us understand the game playing in the AI. That is, सबसे पहले बहुत सारे गेम्स होते हैं जो हम AI में भी खेलते हैं. That is the सबसे पहला हमारे पास जो एल्गोरिदम है इसमें, दैट इज़ द मिन मैक्स एल्गोरिदम. मिन मैक्स एल्गोरिदम क्या है? एक 2 प्लेयर गेम है. बेसिकली एक प्लेयर है जो हमेशा अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता है और एक वैल्यू है जो हमेशा अपनी वैल्यू को मिनिमाइज करना चाहता है. मैक्सिमम तब जीतेगा जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसके पास आएगी. मिनिमम तब जीतेगा जब उसकी मिनिमम वैल्यू उसके पास आएगी. व्हाट आई try to say in this case, let us understand from this example. So ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारे नोड्स हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल वैल्यूज़ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं. अब इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है? मुझे -5 दिख रही है. सो हमेशा जो मिन नोड चाहेगा वो चाहेगा कि मेरे पास -5 आए. लेकिन मैक्स नोड क्या चाहेगा? इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेरे पास है, दैट इज़ 7 मेरे पास है. तो अगर हमारे पास रूट नोड जो मैक्सिमम है, मतलब हम अभी देखेंगे कैसे हम असाइन करते हैं. मैक्स के पास अगर 7 आया तो वो जीतेगा एंड मिन के पास अगर -5 आया तो वो जीतेगा. ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एनालॉजी आई हैव ट्राइंग टू गिवन यू, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने कि मैक्स एल्गोरिदम में हो क्या रहा है. नाउ क्वेश्चन की बात करते हैं. तो आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको असाइन करने हैं सबसे पहले एक ऑल्टरनेटिव वैल्यू को. आपको मैक्स मिन असाइन करते चले जाना है. जैसे हर एक लेवल पे, पहला लेवल पे सारे नोड मैक्स बना देने हैं, दूसरे लेवल पे मिन बना देने हैं, तीसरे लेवल पे मैक्स बना देना है और टर्मिनल वैल्यू जिन नोड के कोई भी चाइल्ड नहीं है उसको मैक्स मिन आप नहीं बनाएंगे. ओके, नाउ इसका फ्लो कैसे जाएगा? तो पहले बैक ट्रैक होता है इसमें, लाइक फ्रॉम वी स्टार्ट फ्रॉम द टर्मिनल नोड एंड वी गो टिल द रूट नोड. तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्मिनल नोड, सबसे पहले फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट हम करते हैं. नाउ डी क्या है? डी इज अगेन द मैक्सिमम नोड. डी हमारा मैक्सिमम नोड है. अब मैक्सिमम नोड क्या चाहेगा कि यहाँ से मैं एच और आई में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूँ. तो डी के पास क्या आ गया? 4 आ गया. ई के पास क्या आएगा? ऐसी 2 और 6 में से 6. एफ के पास क्या आएगा? -3 और -5 में से मैक्सिमम वाला, क्योंकि इस लेवल के सारे नोड क्या है? मैक्स नोड है. तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ की वैल्यू 3. जी के पास कौन सी वैल्यू आएगी? एन और ओ में से 0 और 7 में से अगेन द मैक्सिमम वैल्यू 7, क्योंकि मैक्स नोड क्या चाहेगा कि मेरे पास हमेशा मैक्सिमम वैल्यू है. तो ये चीज़ होगी. अब ऊपर मूव करते हैं, बी और सी नोड. अब बी और सी कैसे हैं? मिन नोड है. तो मिन क्या चाहेंगे? हमेशा मिनिमम वैल्यू हमारे पास आए. तो 4 और 6 में से बी क्या चाहेगा? 4 लेगा मिनिमम वैल्यू. सी एफ और जी में से क्या लेगा? मिनिमम वैल्यू -3 लेगा. मिनिमम ने अपना काम कर दिया कि उसको मिनिमम वैल्यू चाहिए. अब मैक्सिमम के पास क्या आएगा? 4 आएगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो अब ए को क्या लगेगा? विच इज द रूट नोड जो मैक्सिमम है, उसको लगेगा कि येस मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है. अब इट इज नॉट अबाउट द थिंग कि 7 आया या नहीं आया, बट ए ने जो मैक्सिमम वैल्यू अपनी अचीव करी है 4, वो किस पाथ से आ रही है? वो पाथ हमारा आंसर होगा इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का. तो ए से कहाँ से हम आ रहे थे? बैक ट्रैक करिए चीज़ों को. ए से बी गए थे हम, बी से डी गए थे एंड डी से आई गए थे. बेसिकली यहाँ से वो आई की वैल्यू 4 यहाँ से आ रही है. सो आपका जो आंसर होगा मिन मैक्स का, वो यू विल एक्सप्लेन दिस फॉर बैकवर्ड पाथ. सबसे पहले आप यहाँ से नीचे से ऊपर एक्सप्लेन करेंगे एंड देन यू विल गिव द फाइनल पाथ एज योर आंसर कि ए बी डी आई. दिस विल बी योर आंसर इन दिस ग्राफ.
डिड यू अंडरस्टैंड कि असाइन वैल्यू करना टर्मिनल नोड को, मिन चूज करेगा मिनिमम, मैक्स चूज करेगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब मिन मैक्स में ही हमें क्या प्रॉब्लम दिख रही है? अगर हमारा 4 ही आंसर था, सो वाई वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑल दीज अदर नोड्स, मतलब सी एफ जी ई, मतलब इन सबको क्यों एक्सप्लोर करा? दीज आर काइंड ऑफ वेस्ट। तो मिन मैक्स एल्गोरिदम का ही एक एडवांस वर्जन, जैसे हिल क्लाइंबिंग का एडवांस वर्जन आपने देखा, तो ऐसे ही अल्फा बीटा प्रूनिंग भी एक कह सकते हैं आप एडवांस वर्जन है किसका? मिन मैक्स एल्गोरिदम का। अल्फा बीटा प्रूनिंग इंप्रूव्स मिन मैक्स बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी ब्रांचेस। अल्फा जो होती है वो मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करती है एंड बीटा जो होती है वो मिन वैल्यू कैलकुलेट करती है। और प्रूनिंग कंडीशन हमेशा क्या रहती है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। देखिए, ये बेसिकली कंडीशन है जब आप प्रॉपर मेथोडोलॉजी से करें। आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, वहाँ पे मैक्स मिन हम असाइन कर रहे थे ना, यहाँ हम कह रहे हैं कि हर एक जो मैक्सिमम था वो अल्फा है और जो मिनिमम है वो बीटा है। सो मैं आपको बेसिकली मेथोडोलॉजी बता देता हूँ, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, एंड देन अगेन यू कैन ऑब्वियसली फॉलो द फॉर्मल स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग दिस। तो मैक्सिमम लिखते थे हम वहाँ पे एक नोड को, यहाँ पे हर एक ऑल्टरनेट नोड को जैसे वहाँ मैक्स मिन लिखते थे, यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा फॉर मैक्स बीटा फॉर मिन, ऐसे हमने लिख दिया, और टर्मिनल नोड को कोई अल्फा बीटा असाइन नहीं करेंगे। अब आप देखिए प्रूनिंग होती कैसे है। सबसे पहले बॉटम मोस्ट लेफ्ट मोस्ट हम चले जाएंगे। बॉटम मोस्ट हम गए 3 पे, लेफ्ट मोस्ट हम गए 3 पे। सो अब सबसे पहले 3 की वैल्यू किसको आ जाएगी? बीटा को। अब बीटा क्या चाहेगा? बीटा चाहेगा कि मेरे पास, क्योंकि बीटा मिन फंक्शन है, बीटा के पास हमारी पास टेम्पररी वैल्यू आई 3। बीटा चाहेगा याद, अगर मेरे पास ओके 3 आ गया है, अब मैं चाहता हूं क्योंकि मैं मिन फंक्शन हूं, आई वांट कि मेरे पास 3 या 3 से कम वैल्यू है, 3 या 3 से कम वैल्यू है। सो अब वो 5 देखेगा, क्या 5 कम है 3 से? नो, सो इट विल एक्सक्लूड दैट। और 10 क्या 3 से कम है? नो, सो वो नहीं लेगा। तो बी की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 3। अब b की फाइनल वैल्यू 3 आ गई, b विल असाइन दिस वैल्यू टू अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू आई 3। अल्फा क्या है? मैक्सिमम नोड है। तो अल्फा क्या चाहेगा कि मेरे पास 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यू आए, बिकॉज मैक्सिमम करना चाहता है वो अपनी वैल्यू को। सो अब यहाँ पे पॉज करेंगे। अब वो नेक्स्ट नोड को मतलब एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे फ्रॉम द बॉटम। बॉटम मोस्ट आ जाओ, लेफ्ट मोस्ट आ जाओ, फिर से 2 असाइन होगा बीटा नोड को। ये सारे बीटा नोड है सेम लेवल वाले। तो अगर ये बीटा नोड को 2 असाइन हुआ तो बीटा क्या चाहेगा? यहाँ पे हमेशा 2 वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो अब मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 2 या 2 से कम आए। 8 और 19 में से दिखता है? नो। तो अब ये देखिए आप ध्यान से, अल्फा कह रहा है कि मेरे पास 3 या 3 से ग्रेटर वैल्यू आए, और बीटा कह रहा है कि यहाँ पे 2 या 2 से लेसर वैल्यू आए। तो क्या कोई फायदा है नीचे के नोड्स को एक्सप्लोर करने का? नो। सो हम ये कहेंगे कि ये सारी ब्रांचेस जो हैं ये प्रून हो चुकी हैं, इनको प्रून मतलब ये कट हो चुकी है, इनको एक्सप्लोर करने का कोई भी फायदा नहीं है। ओके, नाउ सिमिलरली अब फॉर थर्ड नोड के लिए सिंपल वैसे करिए, बॉटम मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट, यहाँ 2 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? बीटा नोड को। अब 2 वैल्यू का मतलब अगेन दैट इज सेम। 2 मिनिमम क्या बोलेगा? या तो मेरे पास 2 वैल्यू है या 2 से कम वैल्यू है, बट 7 और 3 में से कोई वैल्यू कम नहीं आ रही है। अल्फा 3 से ज़्यादा चाहता है, बट यहाँ 2 या 2 से कम ही वैल्यू मिलेगी। सो अगेन ये पूरी ब्रांच भी हमारी क्या हो जाएगी? प्रून हो जाएगी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास केवल ये दोनों ब्रांचेस को प्रून करके हमारे पास केवल इतना ही बच जाएगा। सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्फा बीटा प्रूनिंग। हमने अननेसेसरी ब्रांच को एक्सप्लोर करने से पहले ही प्रून कर दिया ताकि हमारा टाइम बचे और हम ऑप्टिमम सोल्यूशन को फाइंड कर पाएं। ठीक है, सो अब दिस इज नॉट द थिंग अगेन हेयर कि यहाँ पे 10 क्यों नहीं आया, 19 क्यों नहीं आया, बिकॉज दे आर द मैक्सिमम वैल्यूज 19। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का आंसर 3 अगर है, सो वी हैव कैलकुलेटेड द 3 आफ्टर एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी ब्रांचेस। Got it? So this is the basic concept of the alpha beta pruning. Now द नेक्स्ट हेडिंग इज स्टोकेस्टिक एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल गेन। जैसे स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट हमने देखा था जहाँ पे सब चीज़ क्लियर नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ऐसी पार्शियली ऑब्जर्वेबल कि एजेंट पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक साथ नहीं परसीव कर पा रहा है। सो स्टोकेस्टिक गेम होते हैं जो डाइस बेस्ड गेम होते हैं। अब देखिए लाइक द लूडो गेम, तो वहाँ पे आपका लक बहुत मैटर करता है कि डाइस पे कौन सा नंबर आएगा। इफ इट इज़ अ 6 इट इज़ अ विन, इफ इट इज़ अ 1 इट इज़ अ लॉस इन मेनी केसेस। सो दैट आर द काइंड ऑफ स्टोकेस्टिक गेम जहाँ पे लक भी मैटर करता है। एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल गेम्स आर द गेम्स लाइक पोकर या कार्ड्स प्लेइंग गेम आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप अपने कार्ड्स तो दिख रहे हैं आपको, बट ओपोनेंट के पास क्या कार्ड्स हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं। सो दीज आर द पार्शियली ऑब्जर्वेबल गेम जहाँ पे प्रोबेबिलिटी और बिलीफ स्टेट के ऊपर भी गेम खेला जाता है। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द डिटर्मिनिज्म। ओके, so this is all about unit 2. Unit 2 is completed. Moving to the next unit, that is the knowledge representation and the reasoning. Now knowledge representation क्या है? It is a fundamental area of the artificial intelligence that deals with how a knowledge is about the real world is represented in a form that computer system can understand or reason it. सिंपल सी बात है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कैसे हम रियल वर्ल्ड की नॉलेज हमारे अंदर मतलब जो एजेंट है उसके अंदर हाउ द रियल वर्ल्ड नॉलेज इज इंटरप्रेटेड, कैसे वो
रिप्रेजेंट करता है, या कैसे वो समझता है इन सारी लैंग्वेजेस को, जो भी हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो कैसे परसीव करता है. सो दैट इज़ अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. अपने नॉलेज बेस को कैसे इट काइंड ऑफ रिप्रेजेंट दैट नॉलेज बेस, एंड देन वहाँ से हमारे पास एक्शन वो परफॉर्म करता है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज को एफिशिएंटली स्टोर करना, एनेबलिंग रीजनिंग एंड इन्फेरेंस, मतलब उनसे कुछ डिसीजन, उनसे कुछ पर्टिकुलर रीजनिंग से कुछ इन्फर करना, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग करना. सो दीज आर ऑल द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. हम चाहते हैं कि एजेंट अपनी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से ये सारी चीज़ें करें. अगर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा होगा तो उससे क्या होगा? एक्सप्रेसिव होगा, अनएम्बिगुअस, एफिशिएंट एंड ईजी टू रीजन विद होगा. तो अगेन दीज आर ऑल द क्वालिटीज दैट आर जनरल. अगर नॉलेज अच्छे से रिप्रेजेंट होगी तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा. नाउ हेयर कम्स अ टॉपिक ऑफ द प्रोपोजिशनल लॉजिक. प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सिंपली स्टेटमेंट्स होती हैं. प्रोपोजिशनल लॉजिक इज नथिंग बट सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं. उन्हीं को हम प्रोपोजिशन कहते हैं, जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है. द स्काई इज ब्लू, ट्रू. द स्काई इज ब्लैक, फॉल्स. मतलब इट कैन बी ट्रू इन लेट नाइट, बट येस, सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी रीजनिंग. सिंपल स्टेटमेंट दैट आर नोन एज द प्रोपोजिशनल लॉजिक. इनमें कौन का सारे कनेक्टिव्स होते हैं? एंड, और, नॉट, इफ, इम्प्लाइज. सो दीज ऑल आर द कनेक्टिव विच आर यूज्ड इन द प्रोपोजिशनल लॉजिक, जो सिंपल इफ एल्स कंडीशन या सिंपल एकदम स्टेटमेंट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, पी सपोज एक स्टेटमेंट है जो कहती है इट इज रेनिंग, क्यू कहता है रोड इज वेट, और तो पी इंप्लाइज क्यूज का मतलब क्या होगा? इंप्लाइज मीन्स इफ, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ था, इफ इंप्लाइज मीन्स इफ. सो इफ इट रेन देन द रोड इज वेट. तो आपके पास पी था, आपके पास क्यू था. क्या आप पी इंप्लाइज क्यू लिख सकते हैं? यस. तो यही एक तरीका होता है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का. सो पी इंप्लाइज क्यूज हमने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया इस बात को कहने के लिए. सो हमें ये बात अलग से स्टोर नहीं करनी पड़ी. सो दिस इज वॉट द प्रोपोजिशनल लॉजिक इज. अब सिंटेक्स क्या होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक का? अगर कोई एक लॉजिक है तो उसका कोई एक पर्टिकुलर सिंटेक्स भी ज़रूर होगा. दैट हाउ दीज लॉजिकल सेंटेंसेस फॉर्म कैसे हुए हैं, क्या क्या इनके रूल हैं, क्या हम कब कह सकते हैं कि दीज लॉजिक्स आर रॉन्ग, या हम कब कह सकते हैं दीज लॉजिक आर राइट. तो उनके लिए एक सिंटेक्स है. तो वैलिड सिंटेक्स के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं कि ट्रू अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो हम उसे डायरेक्टली पी लिखेंगे, मतलब पी इफ एनी, पी इज एनी स्टेटमेंट. अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो पी के आगे एक नेगेशन का साइन लगाएंगे, दैट इज द नेगेशन ऑफ द पी. अगर पी हमारी अगर हमें एंड कुछ करना होगा तो देन वी विल से पी और क्यू. एंड अगर हमें पी इंप्लाइज क्यू लिखना होगा, इफ एल्स कंडीशन लगानी होगी, देन वी विल राइट पी एंड क्यू, सॉरी पी इंप्लाइज क्यू. सो विच एक्सप्रेशन, बेसिकली सिंटेक्स जो होते हैं वो वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज होते हैं, जो हमारे पास हम देख सकते हैं कि वो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स है भी कि नहीं है. ओके. नाउ देयर कम्स द सिमेंटिक्स ऑफ द प्रोपोजिशनल नॉलेज. अब सिमेंटिक्स क्या है? जो रियल वैल्यू या रियल जो मीनिंग है सेंटेंस का वो कन्वे करें. सिमेंटिक्स आर कि अपार्ट फ्रॉम सिंटेक्स, कि ठीक है सिंटेक्स तो ठीक है, बट क्या ये कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है, क्या ये कोई रियल मीनिंग कन्वे कर रहा है हमें? सो दैट इज नोन एज द सिमेंटिक और द प्रोपोजिशनल लॉजिक वी कैन से. दैट इज ट्रूथ वैल्यू असाइन करते हैं ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ टेबल के साथ, एंड अगर वो इंटरप्रिटेशन हमारी ट्रू है देन हमें उसको उस हिसाब से हम उसको इवेल्युएट करते हैं, एंड अगर फॉल्स है तो हम उसको उस हिसाब से इवेल्युएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्फेरेंस निकालने के या सिमेंटिक्स के ही अंदर जो इन्फेरेंस होते हैं जिससे हम एक रियल मीनिंग तक जाते हैं किसी भी प्रोपोजिशनल लॉजिक की, उसके बहुत सारे कॉमन इन्फेरेंस रूल्स होते हैं. जैसे आपने डीएसटीएल में भी पढ़ा होगा इन योर सेकंड सेमेस्टर, इन योर सेकंड ईयर, अबाउट द वेरियस कॉमन इन्फेरेंस रूल दैट आर मॉडस पोनेन एंड मॉडस टॉलेंस. ये दो बहुत कॉमन होते हैं. सो वी विल सी दैट कि मॉडस पोनेन क्या कहता है. अगर एक स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, मतलब इफ P देन Q, और एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है P, यानी P इज ट्रू, मतलब P इफ P देन Q है, एंड P इज ट्रू, मतलब इफ ट्रू देन Q इज ऑल्सो ट्रू. डिड यू अंडरस्टैंड? आई विल रिपीट अगेन. P इंप्लाइज Q है, इफ P देन Q, मतलब अगर P कंडीशन सही होती है तो Q भी सही होगा. एंड इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हाट वी आर सेइंग इज कि P सही है तो क्या Q भी सही होगा? यस, वी कैन इजीली कंक्लूड, क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोला था इफ P इज करेक्ट देन Q विल ऑल्सो बी करेक्ट. सो Q यहाँ से करेक्ट हो जाता है. अब दिस साउंड्स रियली ऑफ अ कॉमन सेंस बेसिक, बट दैट इज हाउ एन AI इंटरप्रेट्स द प्रोपोजिशनल लॉजिक थिंग्स. मतलब वो ऐसे ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है एक पर्टिकुलर एजेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दिस इज़ अ बेसिक रॉ वर्किंग, जो कि हम कह सकते हैं बेसलाइन वर्किंग. एंड P इंप्लाइज Q है. मॉडस टॉलेंस की अगर बात करें तो एक स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, इफ P इज करेक्ट देन Q इज ऑल्सो करेक्ट. और हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम बोल रहे हैं कि Q इज नॉट करेक्ट. तो क्या हम इससे इन्फर कर सकते हैं, क्या हम इससे एक कंक्लूजन पर जा सकते हैं कि P भी गलत ही है? यस. सो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन फाइंडिंग द इन्फ्रेंस ऑफ द गिवन प्रोपोजिशनल लॉजिक. अब कुछ लिमिटेशंस हैं क्या प्रोपोजिशनल लॉजिक की? यस, कि ये रिलेशनशिप और ऑब्जेक्ट को इतनी आसानी से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, एंड इट कैन नॉट एक्सप्रेस द जनरल स्टेटमेंट. मतलब ये ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, तो इसको
मतलब एक्सप्रेस करने में इसको डिफ़िकल्टी होती है। तो इन स्टेटमेंट की वजह से हम आए अपने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे। इन सारी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ करा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आखिर होता क्या है। तो डेफिनेशन की यदि बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक दैट अलाउज द रीजनिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। जो भी लिमिटेशन थी प्रोपोजिशनल लॉजिक की वो किसने सॉल्व कर दी? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ने। अब ये ऑब्जेक्ट को, प्रॉपर्टीज को, रिलेशनशिप को, सबको डिफाइन कर पाता है। इट इज़ मोर एक्सप्रेसिव एंड पावरफुल। ऑब्वियसली अगर ये प्रोपोजिशनल लॉजिक की जितनी भी लिमिटेशन है उनको कवर कर पाएगा तो देन इट इज़ ऑब्वियसली मोर एक्सप्रेसिव एंड मोर पावरफुल देन द प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो कॉम्पोनेंट की यदि हम बात करें तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के, जैसे कंस्ट्रेंट हो गया, वेरिएबल्स हो गया, देन अगेन वी हैव योर प्रेडिकेट्स हो गया, ह्यूमन लव्स एक्सेट्रा, फंक्शंस हो गया एंड क्वांटिफायर्स हो गया। दीज आर ऑल द क्वांटिफायर्स। ओके, एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन आर मोर्टल, तो ह्यूमन आर मोर्टल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड फॉर ऑल के लिए हम ऐसे वाला सिंबल यूज करेंगे एंड ह्यूमन इज मोर्टल। सो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक्स इज ह्यूमन, एक्स इज मोर्टल, तो इसको हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। गॉट इट? ये थोड़ा प्रैक्टिस डिमांड करता है ये वाला टॉपिक, इसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस। सिंटैक्स ऑफ प्रॉपर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की यदि हम बात करें तो सिंटैक्स में कोई है वैलिड प्रेडिकेट, प्रॉपर प्लेसमेंट एंड फॉर्मेशन। सिमेंटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की बात करें तो मीनिंग ऑफ प्रेडिकेट, इंटरप्रिटेशन एंड ट्रुथ। फॉर्मूलाज मतलब बहुत सारे ट्रुथ टेबल की मदद से भी हम इन्फर करते हैं बहुत सारी वैल्यूज़ को। एंड इन्फरेंस इन द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, क्या हमें कैसे हम इन्फर कर सकते हैं अनफिसेटेशन के बारे में, रेजोल्यूशन एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग। दीज आर द सम ऑफ द मेथड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम बट गुड टू नो। नॉलेज बेस्ड एजेंट की बात करें तो व्हाट आर नॉलेज बेस्ड एजेंट? अच्छा, अब ये अगेन हम एक नए डोमेन में एंटर करने जा रहे हैं, जैसे नॉलेज बेस्ड एजेंट हमारे कैसे काम करते हैं। नॉलेज बेस्ड एजेंट इज एन एजेंट दैट मेंटेन्स अ नॉलेज बेस, वो मेंटेन करके रखते हैं, यूजेस लॉजिकल रीजनिंग टू मेक द डिसीजन, अपडेट्स द नॉलेज एज पर परसीव द इन्फॉर्मेशन। इसका एक सिंपल एग्जांपल हम ट्राई करते हैं, वंपर्स वर्ड। वंपर्स वर्ड एक बेसिकली गेम होता है जो नॉलेज बेस्ड एजेंट कैसे काम करते हैं उसकी वर्किंग को हमें सिंपली से समझाता है। सो हेयर इट माइट साउंड कंफ्यूजिंग बट वंपर्स वर्ड पे एक बार मूव करते हैं। सो दिस इज द गेम। वंपर्स वर्ड में एक मॉन्स्टर है जिसका नाम है वंपर्स और यहाँ हमारी एक स्टार्टिंग पोजीशन है एजेंट की एंड यहाँ पे एक गोल्ड बार रखा हुआ है। अब एजेंट का काम है कि वो नेविगेट करते हुए गोल्ड बार तक किसी तरीके से पहुंचे, इधर थ्रू दिस वे और एनी ऑफ द वे जो एजेंट पहुंचता है। इट इज़ बेसिकली मतलब इट कैन नॉट ट्रेवल डायगनली। तो यहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रेंट हैं, क्या क्या रुकावटें हैं एजेंट के रास्ते में, हम वो देखते हैं। सो देयर आर मतलब दो रुकावटें हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर वाले ब्लॉक में नहीं जाना चाहिए एजेंट, एंड द सेकंड वन इज द पिट, दैट इज अ गड्ढा। यहाँ पे पिट है तो गड्ढे में एजेंट नहीं गिरना चाहिए। सो दिस इज द टारगेट। अब क्या क्या इंडिकेटर्स हैं इनके, क्योंकि मॉन्स्टर है, कैसे पता चलेगा कि मॉन्स्टर इज कमिंग या यहाँ पे नहीं जाना है? तो मॉन्स्टर के जितने भी एडजेसेंट कॉलम है वहाँ पे एक स्टिंजी स्मेल आती रहेगी, बैड स्मेल आती रहेगी। सो दैट इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर कि आगे वाले कॉलम में मत जाओ, आगे वाले बॉक्स में इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे मॉन्स्टर बैठा हो। ऐसे ही पिट की कैसे हमें क्या इंडिकेटर मिलेगा? ब्रीज, यानी हवाएं चलेंगी, लाइक दिस इज ऑल अ गेम। सो अगेन ये एक इंडिकेटर है कि आगे गड्ढा है सो मत जाओ। सो व्हेनेवर देयर इज अ ब्रीज एजेंट जो है वो अलर्ट हो जाएगा, व्हेनेवर देयर इज अ स्टिंजी स्मेल एजेंट अलर्ट हो जाएगा एंड उन्हीं को ही नेविगेट करते करते अगर एजेंट गोल्ड बार पे पहुंचता है देन एजेंट को रिवॉर्ड मिलेगा। एंड एजेंट या पिट या वंपस मॉन्स्टर वाले ब्लॉक में चला जाता है तो एजेंट के जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सो दिस इज द सिंपल गेम अबाउट दिस वंपस वर्ड। You can obviously read that full, I have given you the notes। and ऐसे ही नॉलेज बेस्ड एजेंट काम करते हैं, वो अपनी नॉलेज में डेटा को स्टोर करते हैं, फीड करते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे डिसीजन को वो लेते हैं। आई होप दिस वंपर्स वर्ड इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। Now the next topic is the logical programming using the Prolog। Now what is a Prolog? Prolog is a logical programming language that is based on the first order logic। first order logic पर ही जो programming language based है वो है Prolog। इसका facts क्या है? facts है, rules है, queries हैं। for example fact हमें दिया हुआ है कि human and John is a human and rule है कि हर एक human जो होता है वो mortal होता है। तो हम इससे क्या conclude कर सकते हैं? that John is mortal। so this is a basic example जो हमें Prolog में हम लिखते हैं। backward chaining for मतलब backward chaining का यूज़ करके Prolog करता है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस देम ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले की बात करें तो एवरीवन इज लॉयल टू समवन, तो एवरीवन के लिए हमने देखा कि स्मॉल ए इज द सिंबल हेयर एंड फॉर ऑल के लिए वी हैव सीन कि दिस ई काइंड ऑफ इज अ सिंबल फॉर समवन एंड लॉयल को हम लिखेंगे एंड एक्स एंड वाई। अगर ऑल को हम एक्स माने एंड समवन को हम वाई माने देन ऑल इज लॉयल। तो फॉर एवरीवन दैट इज फॉर ऑल देयर इज समवन हु इज लॉयल। सो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल which will help you in understanding the first order logic। I have written all the answers here, so do practice them also।
Now we are talking about the next topic, that is the forward chaining and the backward chaining. These are the two important example कि forward chaining क्या होता है, जो डेटा ड्रिवन इन्फ्रेंस मेथड को सपोर्ट करे, मतलब फैक्ट से शुरू होगा देन रूल्स पे जाके एंड तब तक वो अचीव करेगा जब तक गोल नहीं आ जाता. मीन्स पहले फैक्ट से शुरू करेगा देन अकॉर्डिंग टू द रूल इट विल गो टू द कॉरेस्पॉन्डिंग गोल. बट बैकवर्ड चेनिंग में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चेनिंग में तो फैक्ट से ऐसे फ्लो रहेगा बट बैकवर्ड चेनिंग में गोल से वो रीच करेगा एंड अकॉर्डिंग टू द रूल वो फैक्ट्स पर पहुंचने की कोशिश करेगा. सो स्टार्ट्स विद द गोल, लुक्स फॉर द रूल एंड ट्राइज टू प्रूव द सब गोल्स, यानी फैक्ट्स पर वो पहुंचने की कोशिश करेगा. सो दीज आर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग विच वी हैव इन द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड चेनिंग. अब इसी से बहुत एक पॉपुलर एग्जाम्पल है विच इज कॉमनली आस्क्ड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, दैट इज कि ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है एंड यू हैव टू प्रूव फ्रॉम द फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिदम कि ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट है या आप इसको कैसे इन्फर करेंगे. सो इन स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड जो होता है दैट इज कि सबसे पहले सबके प्रेडिकेट आइडेंटिफाई कर लीजिए. प्रेडिकेट मतलब जो हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक लिखा था वो आप सारी स्टेटमेंट इन लेमन टर्म्स अगर मैं कहूँ तो पहले हम सारी प्रोपोजिशनल लॉजिक की या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की हम सारी स्टेटमेंट्स लिख लेंगे. वही लिखा हुआ है, कन्वर्ट द इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एंड देन उसके बाद गिवन फैक्ट्स को लिस्ट करिए एंड देन आपका प्रॉब्लम वहाँ पे फॉरवर्ड चेनिंग बैकवर्ड चेनिंग लगा के सॉल्व हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर द लॉ इट इज अ क्राइम फॉर एन अमेरिकन टू सेल द वेपन्स टू हॉस्टाइल नेशन. अब ये पहला लॉ है तो इस पूरी स्टेटमेंट को, पहली स्टेटमेंट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, सो ये कुछ ऐसी बनेगी. ओके ये हमने कन्वर्ट कर दिया कि अमेरिकन भी है, वेपन भी है, सेल भी कर रहा है, हॉस्टाइल भी है, देन दिस इज अ क्रिमिनल. अब ये जो सारे सिंबल हैं अमेरिकन एक्स वेपन वाई, वो सबसे पहले हमने सारे प्रेडिकेट्स को मेंशन कर लिया है हम अपनी ईज के लिए, ताकि हम ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट आराम से लिख पाएँ. सो उसके लिए हमने क्या करा, सारे जो प्रेडिकेट हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग सबसे पहले हमने लिखा कि एक एक्स पर्सन अमेरिकन है, एक्स पर्सन एनिमी ऑफ अमेरिका है, एक्स इज अ हॉस्टाइल नेशन. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने स्टेटमेंट से पहले कन्वे करी और उस कन्वे को फिर हमने प्रेडिकेट में बदला और फिर उन प्रेडिकेट को यूज़ करा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में. ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कन्वर्ट करी है, ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे कि मिसाइल है, वेपन है, एनिमी है, हॉस्टाइल नेशन है. और देन फॉरवर्ड चेनिंग के हिसाब से हम ये सारी वैल्यूज को दोबारा रीअसाइन करेंगे, पुट करेंगे. कैसे कि अमेरिकन एक्स लिख रखा था हमने, नाउ फ्रॉम द स्टेटमेंट हम क्या देख सकते हैं कि एक्स कौन है, रॉबर्ट है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था. अगर मैं आपको दिखाऊं तो रॉबर्ट इज एन अमेरिकन, वेट अ सेकेंड, यस, तो तो रॉबर्ट इज एन अमेरिकन. ओके, रॉबर्ट हु इज एन अमेरिकन सिटीजन. तो यहाँ से हमने इन्फर करा कि रॉबर्ट हमारे पास एक अमेरिकन सिटीजन है, तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू को रॉबर्ट कर दिया. एंड देन वेपन में हमने कोई भी मिसाइल M1 मिसाइल हमने ले ली M1, और यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि मिसाइल अगर है वाई तो वो वेपन भी है, यानी वेपन में भी M1 आ गया फिर हमारा. ओके, सो लाइक दिस आप फॉरवर्ड चेनिंग बैकवर्ड चेनिंग का इस्तेमाल करते हुए यू कैन ऑब्वियसली फिल दोज सोल्यूशन. जैसे एक्स है, सेल्स है, तो सेल्स एक्स वाई जी है. अब यहाँ एक्स में क्या वैल्यू डाली थी हमने, रॉबर्ट. वाई की क्या वैल्यू डाली थी, ए. एंड कौन सा हॉस्टाइल नेशन है, ए हॉस्टाइल नेशन है. सो रॉबर्ट M1 एंड ए. और यहाँ से अगर हम इन्फर करें तो रूल 1 में हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है एंड उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द इन्फ्रेंस रूल हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे यूजिंग द स्टेटमेंट रूल 2 एंड 3 कि हमारा क्रिमिनल इज रॉबर्ट. सो विद दिस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक वी कैन ईजिली सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो कि आपको एग्जाम में यही स्टेप्स लिख कर आने हैं एंड यू हैव to infer the statements accordingly. Okay, coming on to the resolution part. Now what is resolution? It is a single powerful inference rule used in both propositional and the first order logic. अब हमारे पास resolution क्या है, जो दोनों propositional and first order logic का यूज़ करता है. तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट को कैजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंड देन अप्लाई करेगा उस पर resolution रूल और न्यू क्लॉज डिराइव करके उस पर कॉन्ट्राडिक्शन को वो प्रूव करेगा या रेजोल्यूशन है या नहीं है. बेसिकली जस्ट अ थ्योरेटिकल टॉपिक टू अंडरस्टैंड. इतना फोकस नहीं रहता है इस पे एग्जाम पे, बट जस्ट अ गुड टू नो कि पहले वो कन्वर्ट करेगा स्टेटमेंट को कैजुअल में, देन रेजोल्यूशन रूल्स लगा के नए क्लॉजेस को डिफाइन करेगा एंड कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव करेगा. ओके, then coming on to the ontological engineering and reasoning. तो ontology is a formal representation of knowledge that defines concept, relationship, properties, constraint. ठीक है, तो ऑन्टोलॉजिकल रीजनिंग क्या होती है या इंजीनियरिंग क्या होती है. अभी हमने बात करी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में जो भी हमारा नॉलेज बेस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कमिंग अंडर द पार्ट ऑफ द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. अब उसी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को एक तरह से उसका फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं नॉलेज की, उसका जो टर्मिनोलॉजी है फॉर्मल उसको असाइन करते हैं, दैट इज नोन एज द ऑन्टोलॉजी. उसको उस चीज़ को हम उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी. एंड ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, अगेन नॉलेज को रिप्रेजेंट
करने के प्रोसेस को हम ऑन्टोलॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं। एंड ऑन्टोलॉजिकल रीजनिंग क्या है? वो जो नॉलेज रिप्रेजेंट हुई है इनसाइड अ पर्टिकुलर एजेंट, उससे हम कैसे कैसे नए रिजल्ट्स पे हम इन्फर करते हैं या उनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, नए रिजल्ट तक हम कैसे पहुंच पाते हैं, दैट इज नोन एज द ऑन्टोलॉजिकल रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कंसेप्ट, रिलेशनशिप और रूल होते हैं ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग रीजनिंग में, जैसा हमने बात करी। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट, टीचर, कोर्स, दीज आर द कंसेप्ट, क्लासेस हैं। और रिलेशनशिप कैसे हैं? द पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन द पर्टिकुलर कोर्स, तो एनरोल्ड इन स्टूडेंट एंड कोर्स, एंड टीचर टीचेज द कोर्स दैट पर्टिकुलर। सो ऐसे ही रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं, दैट इज नोन एज द ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड रीजनिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर यूनिट 4 ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन क्या होता है? द एआई सिस्टम ऑफन वर्क्स विद इनकम्प्लीट, नॉइजी एंड अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन। एज वी ऑल नो कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो होती है जिसमें एआई सिस्टम हमारा काम करता है, दैट इज नॉट परफेक्ट। रियल लाइफ इज नॉट परफेक्ट एंड इट इज इनकम्प्लीट, नॉइजी एंड अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन हमारे पास मोस्ट लाइकली होती है। अनलाइक द डिटर्मिनिस्टिक एनवायरमेंट, द एजेंट कैन नॉट श्योर अबाउट द आउटकम्स और द एक्शंस और द ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट होता है, एजेंट उससे श्योरिटी नहीं लगा पाता। मीन्स रियल लाइफ एनवायरनमेंट कभी भी हमेशा डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, वो हमेशा स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट सा होता है एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट जहाँ हमारा एजेंट काम करता है। तो अनसर्टेनिटी कैसे होती है? पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार का हमने एग्जाम्पल लिया, दैट वर्क्स in a real life type of environment. So for the self driving car it is very obvious कि partial observability होगी environment की, inaccurate sensor भी हमेशा perfect नहीं होंगे, incomplete knowledge होगी and randomness रहेगी हमेशा outcomes में। और इस uncertainty को हैंडल करने के लिए वी फाउंड द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग लाइक्लीहुड के बेसिस पे हम एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नाउ देयर कम्स द टॉपिक विच इज प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रीजनिंग करना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। मेक रेशनल डिसीजन अंडर द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में भी आप जब रैशनल डिसीजन करते हो, लेते हो, सो दैट कम्स अंडर द प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। अपडेट द बिलीफ बेस्ड ऑन द न्यू एविडेंस। आपको कोई न्यू एविडेंस मिला एंड उसके हिसाब से आपने अपना बिलीफ अपडेट कर दिया, या फिर प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम। जो भी फ्यूचर आउटकम्स आपका होने वाला है उसके बेस पर आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करा। अब इसी प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग में हमारे पास एक टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड द बेस थ्योरम, एंड बेस रूल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। सो व्हाट अ बेस रूल सेज? बेस रूल एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्रोबेबिलिटी का, जो ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस व्हेन द न्यू एविडेंस इज ऑब्जर्व्ड। मतलब इट इज अ बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की क्या प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट के अकर होने की, प्रोवाइडेड कि एक पहला इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। अगर बेस थ्योरम का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक स्पैम ईमेल आया जिसमें लिख रखा है इट इज गिविंग यू अ फ्री अमाउंट ऑफ मनी। सो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो ईमेल आपके पास ऑलरेडी डिलीवर हो गया है वो एक स्पैम ईमेल है या नहीं? सो दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ द बेस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज कि आपके पास ऑलरेडी मेल आ गया है, मींस अ पर्टिकुलर थिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, एंड उसके बाद हम आपसे ये चीज पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो पर्टिकुलर ईमेल है वो स्पैम है या नहीं। तो बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस जो कि ऑलरेडी पहले अकर हो चुके हैं, उनके बेस्ड पर ये अंदाजा लगाना कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि ये पर्टिकुलर जो एविडेंस है ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, क्या ये स्पैम है, क्या ये स्पैम नहीं है। सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ द बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में अब ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पर कुछ कुछ हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटीज आती हैं यहाँ पे, जिनके नाम है पीए इज कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, एविडेंस एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन है जिसमें ये स्टेट कर रहा है कि अ डिसीज अफेक्ट्स 2% ऑफ द पॉपुलेशन, अ टेस्ट डिटेक्ट्स दैट द डिसीज करेक्टली 95% of the time but falsely reports the disease in the 5% of the healthy people। तो एक एक करके समझते हैं that what values are given। तो डी से हमने माना कि पर्सन को डिसीज है, टी से हमने माना टेस्ट इज पॉजिटिव, एंड नेगेशन ऑफ टी इज टेस्ट इज नेगेटिव, एंड नेगेशन ऑफ डी इज पर्सन डज नॉट हैव अ डिसीज। सो पी ऑफ डी हमें दे रखा है 0.02, क्योंकि डिसीज इसमें बता रखा है डिसीज जो है 0.2%, मतलब 2% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। तो 0.02 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यहाँ पे हो गया। उसके बाद अ टेस्ट डिटेक्ट्स द डिसीज करेक्टली 95% ऑफ द टाइम, कि टेस्ट हुआ और पर्सन को डिसीज थी पहले से, तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी थी टेस्ट की कि टेस्ट सही हो, कि एक्चुअली वो डिटेक्ट कर ले कि पर्सन को डिसीज हो। तो दैट इज पी ऑफ टी बाई डी, कि डिसीज पहले से थी और ऐसी प्रोबेबिलिटी कि टेस्ट ने उस डिसीज को डिटेक्ट कर लिया, इस बात की प्रोबेबिलिटी हुई 0.95। और अगर इसका उल्टा कर दें, 100 में से 95 को कैंसिल करें तो 5% बचा, तो उसका क्या मतलब है कि पर्सन को डिसीज नहीं थी बट फिर भी उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाल ली बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1। सो दैट इज
0.05। तो सबसे पहले अब हमें क्या पता है, हमें P ऑफ TD पता है, P ऑफ T नेगेशन D पता है, P ऑफ D पता है और हमें P ऑफ नेगेशन D भी पता है विच इज़ 0.98, है ना। अब हमें क्या वैल्यू पता लगानी है, हमें P ऑफ T नहीं पता है विच इज़ द एविडेंस, कि टेस्ट का एविडेंस तो हमें ढूंढना है। तो एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है according to which it states कि P of T is equal to P of T by D into P of D plus P of T by negation of D into P of negation D। मतलब D और D यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड negation of D यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड P of T plus P of T is not 2 P of T, it will be 1 P of T। तो ये एक ट्रिक है छोटी सी, इसको याद रखने की। तो आफ्टर ऑल ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड अगर हम बेस रूल लगाएं तो अगेन हम अपने ऊपर वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे हम आंसर को जनरेट कर सकते हैं। एंड हमारे आंसर का जो इन्फ्रेंस है, हम क्या उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 27.9% प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को एक्चुअली डिजीज़ थी, विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ D by T। D by T मतलब टेस्ट पॉजिटिव हुआ और उस पर्सन को डिसीज भी थी। यही तो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। अगर आपको मैं क्वेश्चन दोबारा दिखाऊं, सो द क्वेश्चन स्टेट्स इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग अ डिसीज। सो टेस्ट पॉजिटिव है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिसीज है। सो दैट इज द सेम एज P ऑफ D by T, कि टेस्ट हो चुका है, वो पॉजिटिव आया है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी की पर्सन को डिसीज है दैट इज 0.279। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ द बेस थ्योरम और बेस रूल। बेसियन नेटवर्क की बात करें, सो इट इज ऑल्सो अ सिमिलर कंसेप्ट बट अ ग्राफिकल मॉडल। क्या है, बेसियन नेटवर्क एक ग्राफिकल मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप को। जैसे बेस थ्योरम न्यूमेरिकली हमें रिलेट करके दिखा रहा था प्रोबेबिलिटीज को, ऐसे ही ये ग्राफिकल मॉडल है जो रिलेट करता है अमंग वेरिएबल्स। जैसे नोड्स हो गए, हमारे एजेस हो गए। नोड्स क्या है, हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं एंड एजेस क्या है, कंडीशनल डिपेंडेंसीज हैं। इट इज नथिंग, इट इज सिंपल कि मान लीजिए आपने जो बेस में काम करा है आप उसे एक जस्ट ग्राफिकल मॉडल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आज मान लीजिए वेदर ऐसा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पीछे भी रेन हुई होगी या पीछे मतलब पिछले 10 दिनों में भी ठंड हो रही होगी, लाइक समथिंग लाइक दैट। अकॉर्डिंग टू बेस वी आर कन्वर्टिंग दैट इनटू अ सिंपल ग्राफिकल मॉडल, सो दैट इज नोन एज द बेसियन नेटवर्क। इसमें ईच नोड हैज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। हर एक नोड की कंडीशनली प्रोबेबिलिटी टेबल होती है, दैट इज नोन एज द CPT। Okay, so this in very short I have explained you as mentioned in the AI syllabus and as far as it is concerned here। आप एक सिंपल एग्जांपल की फीचर्स अगर देखें तो मॉडल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है ग्राफ में, एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन करता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, सपोर्ट करता है प्रोबेबिलिटी इन्फेरेंस को ऑल्सो को। जैसे अगर एग्जांपल की यदि बात करें तो रेन है तो ट्रैफिक जैम होगा, सो इफ इट रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रैफिक जैम इंक्रीजेस, यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस, रिस्क एनालिसिस एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स ऑल्सो। तो बेसियन नेटवर्क्स एंड बेस थ्योरम दोनों ही बहुत ज़्यादा उनकी वाइड एप्लीकेशंस है in the industries। Okay, now coming on to the next important topic which is also important, which is known as the fuzzy logic and handling the imprecision। so need of fuzzy logic की क्या हमें ज़रूरत पड़ी। देखिए हमारे पास जो लॉजिक होता है वो हमेशा 0 and 1 में काम करता है, बट रियल वर्ल्ड कंसेप्ट इससे बहुत दूर है। रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, वी हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग इम्प्रिसाइजली। सो फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हॉट, वार्म और कोल्ड तीनों हो सकता है। स्पीड कैन बी स्लो, स्पीड कैन बी फास्ट। स्पीड ऐसा नहीं है कि या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी, वो स्लो भी हो सकती है, वो फास्ट भी हो सकती है, वो एट अ मीडियम पेस भी हो सकती है। ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो उन्हीं पॉसिबिलिटीज को इंटीग्रेट करने के लिए हमने फजी लॉजिक बनाया, जहाँ पे वो कहता है कि मैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 रखूंगा। इट अलाउज पार्शियल ट्रुथ, जो ट्रुथ पूरी तरीके से एब्सोल्यूट भी नहीं है और उसे हम एब्सोल्यूट फॉल्स भी नहीं कह सकते, तो ऐसे पार्शियल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द कंसेप्ट ऑफ फजी लॉजिक। मेंबरशिप फंक्शन की बात करें तो व्हाट इज मेंबरशिप फंक्शन, इट डिफाइंस द डिग्री टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ फजी सेट। एक एलिमेंट कितना ज्यादा उस फजी सेट को बिलोंग करता है, विच सेट लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 1, उसको कहते हैं मेंबरशिप फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें हॉट का कॉम्पोनेंट कितना होगा एंड वार्म का कॉम्पोनेंट कितना होगा, यानी वार्म टेम्परेचर हम कितना परसेंट कह सकते हैं 35 को, एंड हॉट उसे कितना परसेंट कह सकते हैं। तो 35 डिग्री सेल्सियस मीन्स हॉट उसे हम 0.7 कह सकते हैं एंड वार्म से वो थोड़ा ज़्यादा ही है, तो हमने इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम रखी है, दैट इज़ 0.3 ही रखी है। बेसिक फजी ऑपरेशन की बात करें तो एंड और नॉट यहाँ पर भी यहाँ पे हमारे यूज होते हैं। 1 माइनस म्यू एक्स मीन्स म्यू इज एनी काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी जो लाई करती है बिटवीन 0 to 1, एंड उसको अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें उसका जस्ट अपोजिट मिल जाएगा, जस्ट एज इन द केस ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। फजी लॉजिक इज वाइडली यूज इन वॉशिंग मशीन, AC कंट्रोल सिस्टम, जितने भी हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स हैं लाइक हाउस होल्ड सिस्टम्स ऑल्सो, वहाँ पे भी फजी लॉजिक का यूज होता है। देन वी आर
गोइंग टू सी अबाउट द न्यूरल नेटवर्क्स, उसके बेसिक्स हम यहाँ कवर करेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होते हैं। नाउ वी ऑल नो आर ह्यूमन ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स, एंड उस मल्टीपल न्यूरॉन्स में वो बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। तो उसी सेम हमारे न्यूरल पैटर्न को एक रेप्लिकेट करने का सिस्टम बनाया है, दैट इज कॉल्ड द न्यूरल नेटवर्क्स। और न्यूरल नेटवर्क्स का जो बेसिक मॉडल होता है विच इज नोन एज द परसेप्शन मॉडल। दीज टॉपिक्स आर नॉट सेपरेटेड, दीज आर रिलेटेड टॉपिक्स ओनली। तो परसेप्ट्रॉन क्या होता है? परसेप्ट्रॉन इज डिफाइंड एज अ सिंपल न्यूरल नेटवर्क मॉडल यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, न्यूरल नेटवर्क का ये एक फॉर्मूला है, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। तो मान लीजिए जस्ट लाइक हमारे ब्रेन की वर्किंग आप समझते हैं। इनपुट मान लीजिए हमने कोई एक सेंसरी एक्शन परफॉर्म करा वाया आवर हैंड्स। हमने मान लीजिए एक हॉट यूटेंसिल पे अपने हैंड रखा। नाउ व्हाट वी गेट एज अ सेंसेशन दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज वार्म। तो ये मान लीजिए हमारे इनपुट्स में वो सारे वेरिएबल्स रखे हुए हैं। अब उनको सर्टेन वेट असाइन करा गया है। अब वेट किस लिए असाइन करा गया इनपुट के साथ? ताकि उसकी बायसनेस को रिमूव करा जा सके। मान लीजिए इनपुट ए कोई अलग बात कह रहा है, इनपुट बी का न्यूरॉन मान लीजिए कोई अलग बात कह रहा है, इनपुट सी का न्यूरॉन कुछ अलग बात कह रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ईच इनपुट वी हैव असाइंड ईच वेट in order to cancel the biasness which is associated with each and every input. अब नेटवर्क इनपुट फंक्शन क्या करेगा? x को w के साथ इंटीग्रेट कर देगा। दैट डज नॉट मीन x प्लस w कर देगा एक्सप्लिसिटली, बट इट जस्ट मीन कि इन दोनों को कंबाइन कर देगा। एंड देन एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम करेगा? ये वाला, इफ आउटपुट अगर हमारा 1 आएगा तभी जब हमारे समीशन की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, एंड अगर वो 0 से कम रही तो आउटपुट की वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो क्या आप यही फॉर्मूले में देख पा रहे हैं? दैट इज W1, दैट इज द वेट अगर हम कंबाइन कर दिया हमारे ईच इनपुट के साथ, और उसमें एक अलग से हम फॉर्मूले में भी अलग से एक बायस जोड़ते हैं इन ऑर्डर टू कैंसिल द एक्सटर्नल बायस विच इज एसोसिएटेड विद द वेट्स एंड द इनपुट। तो उसको भी लिए हमने बायस यहाँ पे इंटीग्रेट करा है इन दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिक परसेप्ट्रॉन मॉडल। एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करेगा हमारा आउटपुट क्या आएगा। एक्टिवेशन फंक्शन एक स्टेप फंक्शन ही है 0 1 का, जो आउटपुट 1 आएगा या 0 आएगा। मतलब ब्रेन से हमारा जो हमने हॉट यूटेंसिल टच करा था, तो हमारा ब्रेन आखिर में क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वेदर इट इज हॉट और नॉट, वेदर इट इज 1 और इट इज 0। तो वो चीज हमारा एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द नेटवर्क इनपुट फंक्शन। ओके, आई होप आई एम क्लियर नाउ। बेसिक परसेप्ट्रॉन मॉडल में भी बहुत दिक्कत थी। लाइक हम वेट्स जो असाइन कर रहे थे वो वेट्स एकदम रैंडमली असाइन कर रहे थे। आपको याद है ये वाले लाइक दिस W0, W1, W2, so these are the random weights that we are assigning along with each input, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑफ दिस परसेप्ट्रॉन मॉडल। हम रैंडम वेट्स असाइन नहीं कर सकते बिकॉज इन केस ऑफ रैंडम वेट्स इट इज़ वेरी अनसर्टेन एंड वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग एन एरर। तो बैक प्रोपोगेशन एक यही मैकेनिज्म है जो हमें कहता है कि नेटवर्क पे हम रिड्यूस कर सकते हैं एरर बाय एडजस्टिंग द वेट। हम वेट को एडजस्ट करके एक न्यूरल नेटवर्क में रिड्यूस कर सकते हैं एरर को। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आउटपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर वेट्स को अकॉर्डिंगली अपडेट करना पड़ेगा। तो आप अगर नेट वेट का फॉर्मूला देखेंगे तो दैट इज जो आपके पुराने वेट असाइन थे उसकी वैल्यू प्लस ईटा। ईटा इज द लर्निंग रेट हेयर, और जितना भी एरर हमने ऑब्जर्व करा है आउटपुट में वो इनटू इनपुट। अगर हम एक सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है एंड गिवन ऑल द वैल्यूज, तो आप उसे पुट करके आराम से नेट वेट फाइंड कर सकते हैं। ओके, यू कैन पॉज एंड सी द एग्जांपल। नाउ we are coming on to the fundamentals of the machine learning, which is nearly the end of this unit, जो कि mostly हो ही जाता है, which is the machine learning. Machine learning is a very integral subfield of the AI that enables the system to learn from the data and improve the performances without the explicit programming. बिना किसी प्रोग्राम करे डेटा सेट के थ्रू अगर हम किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, अगर उससे लर्न कर रहे हैं, तो दैट इज अ फील्ड ऑफ विच इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। ये आजकल बहुत बूम पर है। इसके की कंपोनेंट होता है डेटा, मॉडल, लर्निंग एल्गोरिदम एंड इवैल्यूएशन, बट द मेन की फैक्टर इन द ML इज द डेटा। अगर आपका डेटा सेट अच्छा होगा तो आपकी मशीन अच्छे से ट्रेन होगी, अगर डेटा सेट ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी मशीन अच्छे से ट्रेन नहीं होगी। ML focuses on learning the patterns while AI focuses on the decision making. Very important line. It is a distinction between ML and AI. बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ML और AI में क्या डिफरेंस है। तो ML केवल पैटर्न को लर्न करता है, while AI जो होता है उन पैटर्न्स के बेसिस पे डिसीजन हमारे मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें 2 टाइप की लर्निंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस डोमेन में AI में, दैट इज सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? इट यूजेस द लेबल डेटा वेयर एन इनपुट
एंड करेक्ट आउटपुट आर नोन। मतलब सुपरवाइज डेटा में हमारा जो डेटा होता है वो लेबल्ड होता है। मतलब देखिए, सुपरवाइज लर्निंग मतलब हम जैसे क्लासरूम में एक सुपरवाइज लर्निंग फॉर्म में हम चीज़ें याद करते हैं। मतलब हमारे पास एक सुपरवाइजर और इंस्ट्रक्टर और टीचर होता है एंड वी एज अ स्टूडेंट वी लर्न थिंग्स फ्रॉम देम। वो हमें बताते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, हम सेम इन्फॉर्मेशन को लर्न करके परसीव करके आउटपुट जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन। तो इन द सेम वे हम पहले मशीन को बताएंगे, एक लेबल डेटा देंगे कि देखो दिस वन इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल, दिस इज सर्कल, दिस इज ट्राइंगल एंड दिस इज अ हेक्सागन। उस पैटर्न को मशीन जो होगी हमारी वो लर्न करेगी एंड बेस्ड ऑन ऑल द पैटर्न्स एमएल मॉडल अब उसको अपना टेस्ट डेटा सेट वहाँ पे इनपुट लेगा। मतलब टेस्ट डेटा मतलब अब मशीन अपने आप से और जो भी डेटा सेट में अवेलेबल होंगे वो खुद से अपने आप का टेस्ट लेगी मशीन। जैसे हम मॉक्स देते हैं ना अपनी प्रैक्टिस के लिए कि अब अगर हमें एक रैंडम मतलब शेप आ जाए तो कैन वी गेस इट्स नेम। तो इन द सिमिलर फैशन ओनली, जस्ट लाइक हाउ अ चाइल्ड लर्न्स फॉर हिज एग्जाम, दैट इन द सिमिलर फैशन ओनली द मशीन ऑल्सो लर्न्स एंड टेस्ट इटसेल्फ वाया द टेस्ट डेटा कि वेदर इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न करेक्टली और नॉट एज मेंशन्ड बाय द सुपरवाइजर। ये सारा जो काम होता है लेबल डेटा प्रोवाइड करना एंड सुपरवाइज करना एमएल मॉडल को, दिस इज हैपनिंग इन द सुपरविजन ऑफ समवन हु इज एक्चुअली ट्रेनिंग दैट मॉडल। और उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रिडिक्शन निकल के आता है कि क्या मशीन ने करेक्टली आइडेंटिफाई करा है या नहीं। इसके जो पॉसिबल एग्जांपल्स होते हैं दैट आर लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज एंड न्यूरल नेटवर्क। ओके, अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो सुपरवाइज में जैसे हम लेबल डेटा प्रोवाइड कर रहे थे, अनसुपरवाइज में हम अनलेबल्ड डेटा प्रोवाइड करते हैं और वो एआई जो होता है वो अपने आप में हिडन पैटर्न्स डिस्कवर करता है। इसका एग्जांपल होता है कस्टमर सेगमेंटेशन, क्लस्टरिंग, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। कॉमन एल्गोरिदम यदि हम बात करें तो के मीन्स क्लस्टरिंग एंड हायरार्कियल क्लस्टरिंग, यहाँ पे दो हमारे कॉमन क्लस्टरिंग आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लेबल नहीं होता तो केवल यहाँ पे हम सेग्रीगेट कर पाते और एआई यहाँ पे दो एक मतलब क्लस्टर्स बनाता कि ये एक जैसी शेप्स हैं एंड ये दोनों एक जैसी शेप है, तो दोनों का क्लस्टर बनाता। दैट इज नोन एज द अनसुपरवाइज लर्निंग, जब डेटा अपने आप से वो हिडन पैटर्न को डिस्कवर करे। Now coming on to the last unit of AI, that is the applications of AI and multi-agent system। बात करते हैं इसकी। तो एप्लीकेशन ऑफ एआई, तो यहाँ पे हम क्या फोकस करेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे होती है, रोबोटिक्स, एजेंट्स एंड एक्सप्लेनेबल एआई जैसे हम एडवांस्ड कंसेप्ट्स की ओर मूव करेंगे एंड इनके कंसेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे। पहला टॉपिक आता है यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डेफिनेशन से अगर जाएं तो एनएलपी एक ब्रांच है एआई की जो अनेबल करती है कंप्यूटर को ताकि वो अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट कर पाए ह्यूमन लैंग्वेज को इन अ मीनिंगफुल वे। यानी ह्यूमन लैंग्वेज को ऐसे जनरेट करना ताकि ह्यूमनली अंडरस्टैंडेबल हो वो चीज़ एंड वो ह्यूमन लैंग्वेज को बेसिकली प्रोसेस कर पाए और समझ पाए दैट व्हाट अ पर्टिकुलर ह्यूमन इज ट्राइंग टू से, एंड जब आउटपुट आए तो दैट आउटपुट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल बाय अ ह्यूमन ऑल्सो। तो ऑब्जेक्टिव इसके यही है, यू कैन ऑल्सो रीड देम, अनेबल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम एग्जैक्ट मीनिंग। कि एनएलपी टास्क की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हम एआई से बात करते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं कि डू दिस डू दैट, तो वैसे ही हमारी जो हर एक लैंग्वेज है उसके एक स्मॉल स्मॉल टोकन्स बनते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में उसको टैग किया जाता है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स थोड़े से प्रोसेसेस होते हैं जो एनएलपी को कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे जाकर मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके एप्लीकेशन की बात करें तो चैटबॉट, वर्चुअल असेसमेंट, अगेन चैट जीपीटी, टेक्स्ट समराइजेशन, सर्च इंजन एंड वॉइस बेस्ड एजेंट। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल आई वुड से अनदर टॉपिक है जो कि बात करता है स्पीच एक्ट थ्योरी की। मतलब एग्जांपल तो वही चैट जीपीटी एनएलपी का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि सब डोमेन है एनएलपी का ही, दैट इज स्पीच एक्ट थ्योरी। कि स्पीच एक्ट थ्योरी क्या होती है? तो स्पीच एक्ट थ्योरी कहती है कि जब कोई पर्सन कुछ बोलता है, सो दे आर नॉट ओनली सेइंग समथिंग बट दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्शन। लाइक रिक्वेस्ट अगर किसी पर्सन से हम कर रहे हैं, सो वी आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द रिक्वेस्ट टाइप्स ऑफ लाइक एक्शंस ऑल्सो। नो, हम ऐसा तो नहीं है कि फाइट वाले एक्शंस कर रहे हैं बट वी आर रिक्वेस्टिंग समवन, सो दैट वी डोंट डू। इन अदर वर्ड्स, लैंग्वेज इज यूज्ड टू डू थिंग्स सच एज रिक्वेस्टिंग, प्रॉमिसिंग, ऑर्डरिंग और इन्फॉर्मिंग। द थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय J.L. ऑस्टिन एंड लेटर डेवलप्ड बाय जॉन सेयरले। सो स्पीच एक्ट क्या होता है? बेसिकली स्पीच एक्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन आता कैसे है। वो बोलता है स्पीच एक्ट थ्योरी को डिफाइन करो, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड, एंड हाउ विल यू डिफाइन द फॉलोइंग स्पीच एक्ट इफ द परफॉर्मेटिव एंड कंटेंट आर डिफाइंड। आपको ये 2 चीज़ दे देगा एंड ये तीसरी चीज़ आपसे पूछेगा, परफॉर्मेटिव क्या परफॉर्म कर रहा है? रिक्वेस्ट। एंड कंटेंट क्या है? डोर इज क्लोज्ड। तो अब आप बताओ कि स्पीच एक्ट क्या होगा इन दोनों से। तो हम क्या समझ रहे हैं कि परफॉर्मेटिव क्या होता है कि क्या इंटेंशन है उस सेंटेंस को अटर करने के बिहाइंड, मतलब उस सेंटेंस को जब उसने बोला उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? रिक्वेस्ट कर रहा था। कंटेंट क्या है? मतलब जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन कन्वे करी गई वो है द डोर इज क्लोज्ड। तो अब स्पीच एक्ट एक्शन क्या होगा अगर ये दोनों चीज़ हैं? तो यहाँ पे एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, व्हेन द स्पीकर सेज द कंटेंट डोर इज क्लोज्ड विद द परफॉर्मेटिव एक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, द स्पीकर इज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग समवन टू क्लोज द डोर।
अब यहाँ पे आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि डोर तो पहले से ही क्लोज था, सो हाउ ही इज रिक्वेस्टिंग एंड ही इज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग टू ओपन द डोर। नो, एक्चुअल कंटेंट के हिसाब से हमें उसको जस्ट इंटरप्रेट करना है ना। ये आपको बहुत कॉमन सेंस लग रही होगी कि हाँ रिक्वेस्ट करा तो ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बट दैट्स हाउ अ पर्टिकुलर एआई अंडरस्टैंड्स एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। वो ऐसे चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं एंड ऐसी स्मॉल स्मॉल चीज़ों से फिर दे कैन एबल टू जनरेट हायर एंड मच एडवांस्ड रिजल्ट्स। तो यही हमारा आंसर है, सिंपली कुछ नहीं करना है, रिक्वेस्ट टू क्लोज द डोर। दिस इज द ओनली स्पीच एक्ट विच वी आर हैविंग. Now, if we talk about the machine translation, so what is machine translation? It refers to the automatic translation of text or speech from one language to another. Simple Google Translator की तरह एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना इज मशीन ट्रांसलेशन. अप्रोच क्या है? बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं. यू कैन रीड दैट. चैलेंजेस, एप्लीकेशंस लाइक द ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म. चैलेंजेस भी बहुत आ सकते हैं, एम्बिग्विटी, ग्रामर में डिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट परजिवेशन, मतलब कि ब्रिटिश एक्सेंट आपने देखा है कितना अलग होता है फ्रॉम द इंडियन एक्सेंट ऑफ इंग्लिश. सो एक्सेंट प्रॉब्लम आ सकती है एंड अगेन मेनी मोर थिंग्स कैन कम. एंड अगेन जो अप्रोचेस हैं उनकी वो आप ब्रीफ में भी देख सकते हैं. लाइक रूल बेस्ड हो गया, लाइक कुछ सिंटैक्स बेस्ड रूल बेस्ड अप्रोच है जिनके बेस पे हमें कन्वर्जन करना है बेस्ड ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस. जो एजेंट्स होते हैं वो मशीन ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्शन. अगर एक सिंपल लाइन में इसका मतलब समझे कि रिट्रीवल का क्या मतलब होता है एंड एक्सट्रैक्शन, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. क्या कोई डिफरेंस है? येस, देयर इज अ डिफरेंस. फाइंडिंग द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज डेटा सेट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. मतलब डॉक्यूमेंट, अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर फाइल आपकी बहुत लार्ज डेटा सेट में कहीं पड़ी हुई है एंड इफ यू वांट टू फाइंड दैट पर्टिकुलर फाइल, तो आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हो. एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन देन? Information extraction focuses on extracting the structured information from that unstructured text. मतलब अब आपको वो फाइल मिल गई, अब उस फाइल में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि अब आपको वो फाइल मिल गई है एंड अब आप उस फाइल में से अपनी पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है या जो नाम है या करेक्ट एक्चुअल जो आपके सेंटेंसेज या एक्चुअल कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड करना. सो दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्शन एंड रिट्रीवल डिफरेंस. तो रिट्रीवल का एग्जांपल तो गूगल सर्च इंजन, डॉक्यूमेंट सर्च इंजन, ये सब हो सकते हैं जो इंडेक्स रैंकिंग क्वेरी प्रोसेसिंग के हिसाब से कंसेप्ट पे वर्क करते हैं. और एक्सट्रैक्शन के एग्जांपल्स हो सकते हैं कि नेम्स एक्सट्रैक्ट करना, डेट्स, लोकेशन एक्सट्रैक्ट करना, रेज्यूमे पार्सिंग, न्यूज़ एनालिसिस. सो दीज ऑल आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ रिट्रीवल एंड एक्सट्रैक्शन. रोबोटिक्स की यदि बात करें, नाउ दिस इज एन एंटायरली कंप्लीट न्यू डोमेन इन द realm of AI and it's very popular since last 5 or 6 years. So robotics is an important application of AI which involves designing intelligent machines that are capable of interacting with the physical world. They can actually do physical things. By the help of AI we can perform such things by the help of robotics domain. Perception की बात करें, अब यहाँ से जितने भी टॉपिक आप देखेंगे 5.1, 5.2, तो these all topics are as acting as a sub topic of the robotics. अब परसेप्शन की यदि हम बात करें तो what is perception? It refers to the robot's ability to sense and interpret its environment using the sensor. Obviously बहुत कॉमन सेंस ही बात है. परसेप्शन क्या होता है? किसी रोबोट की एबिलिटी ताकि वो सेंस कर पाए और इंटरप्रेट कर पाए अपने आसपास का एनवायरनमेंट. कौन कौन से सेंसर होते हैं? जैसे कैमरा हो गया, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो गया, इंफ्रारेड सेंसर एंड टच सेंसर. तो ये सारे सेंसर्स की मदद से वो परसेप्शन कर पाता है, परसीव कर पाता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को. प्लानिंग की यदि बात करें, सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट रोबोट मस्ट परफॉर्म टू अचीव अ गोल. जैसे वो पाथ प्लानिंग कर सकता है, टास्क प्लानिंग कर सकता है. इफ अ रोबोट इज इन मोशन, सो रोबोट कैसे अपना पूरा पाथ, अपना गोल अप टू द डेस्टिनेशन वो कैसे प्लान करता है, दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग. सो नेक्स्ट बात करते हैं मोशन की. तो मोशन की यदि बात करें तो मोशन क्या होता है कि फिजिकल मूवमेंट जो भी रोबोट कर रहा है, सो दैट सिंपली स्टेट्स कि मोशन वो कर रहा है ऑब्वियसली. सो उसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं रोबोट को जो फेस करने पड़ते हैं, दैट इज बैलेंस सही से बना रहा है, प्रिसीजन बना रहा है और अवॉइडेंस वो और कोलिजन को वो अवॉइड करे. सो दीज आर द 3 बेसिक की चैलेंजेस दैट अ रोबोट मस्ट डू फॉर इट्स मोशन. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द स्पीच रिकॉग्निशन, नाउ दिस इज अ वेरी फेमस टॉपिक कि स्पीच रिकॉग्निशन होता क्या है? ये आइडेंटिफाई करता है एंड कन्वर्ट करता है स्पोकन लैंग्वेजेस टू टेक्स्ट. लैंग्वेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, आई होप सबने ही एक बार ट्राई करा ही होगा. दैट इज वेरी फेमस डोमेन एंड इट्स कम इन अंडर द रेल्म ऑफ AI. सो वर्किंग कैसे होती है? ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, उस ऑडियो में से फीचर को एक्सट्रैक्ट करता है, पैटर्न मैच करता है और उसके हिसाब से फिर वो लैंग्वेज मॉडल करता है, फॉर्म करता है. एप्लीकेशन क्या है? आप वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं, जैसे गूगल का वॉइस असिस्टेंट है, देन ऑटोमेटेड कस्टमर्स हैं आपके पास, डिक्टेशन सॉफ्टवेयर हैं. सो देयर आर मेनी मोर सच दैट. ओके,
So this is all about the speech recognition. Now we are coming on to the next topic, which is known as the software agent. Software agent is an autonomous program that performs the task on the behalf of the users or the system. So autonomous program होते हैं ऐसे जो परफॉर्म करते हैं हमारे टास्क यूजर के बिहाफ पे. वो ऑटोनोमस होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं और वो हमसे ज़्यादा प्रोएक्टिव यानी एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा, और उनके अंदर एक सोशल एबिलिटी होती है. दे कैन परसीव आर सोसाइटी इन द सिमिलर मैनर वी आर डूइंग. सो स्मार्ट एजेंट की यदि हम बात करें तो स्मार्ट एजेंट कहीं ये सेम डायग्राम है जो कि हमें दिखाता है कि स्मार्ट एजेंट्स आर समवेयर बिटवीन द कोलैबोरेटिव लर्निंग एजेंट्स, इंटरफेस एजेंट और कोलैबोरेटिव एजेंट. ये तीनों एजेंट्स के बीच में हमारे पास स्मार्ट एजेंट्स आते हैं जो खुद इंडिपेंडेंटली केपेबल होते हैं सारा काम करने पे ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजर्स और द एक्चुअल सिस्टम. अगर इन सॉफ्टवेयर एजेंट्स की हम आर्किटेक्चर की बात करें, सो दे डिफाइन दैट हाउ द एजेंट विल परसीव, डिसाइड एंड एक्ट. तो आर्किटेक्चर यही बात करता है कि कैसे एजेंट किसी भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को परसीव करेगा, वो डिसाइड करेगा एंड देन उस पर एक्ट करेगा. रिएक्टिव एजेंट्स, अब इनके कुछ टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर एजेंट्स के, तो उनके टाइप्स देखते हैं. बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज द रिएक्टिव एजेंट एंड द सेकेंड वन इज द मॉडल बेस्ड एजेंट और द डेलिबरेटिव एजेंट एंड द थर्ड वन इज द हाइब्रिड एजेंट. सो रिएक्टिव एजेंट की बात करें तो रिएक्टिव एजेंट एक्ट्स अपॉन ओनली द करंट परसेप्ट विदाउट कंसिडरिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस. मतलब जो करंट सिचुएशन है एजेंट केवल उसी के हिसाब से अपनी सारी डिसीजन लेगा. फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार की होगी यदि हम बात करें तो इफ द ट्रैफिक सिग्नल इज रेड सो द कार विल नीड टू स्टॉप. If the traffic signal is red, so the car need to stop. So this is a proper example of reactive agent कि सिग्नल रेड हुआ, कार को स्टॉप कर दो विदाउट थिंकिंग कि वो अपने प्रीवियस नॉलेज बेस का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज रिएक्टिव एजेंट्स डज नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ नॉलेज बेस. तो उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई रीजनिंग नहीं होती, वो जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं बस सिचुएशन को, एंड रूल बेस्ड होते हैं, इफ एल्स टाइप कंडीशन बेस्ड होते हैं बस, जैसे ऑटोमेटिक डोर हो गया या थर्मोस्टैट हो गया, एंड सेल्फ ड्राइविंग कार ऑल्सो. डेलिबरेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, दे मेंटेन एन इंटरनल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. मतलब उनके पास खुद में एक रियल अपना नॉलेज बेस होता है और वो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर रीजनिंग एंड प्लानिंग. मतलब वो पहले सोचते हैं देन दे विल परफॉर्म द सर्टेन एक्शन. जैसे चेस प्लेइंग एआई हो गया, रूट प्लानिंग सिस्टम हो गया गूगल मैप पे. सो फर्स्ट दे विल थिंक एंड देन दे आर गोइंग टू प्रेजेंट द सिचुएशन. जैसे आपने अगर गलत रूट पे निकल गए आप गूगल मैप पे, एंड इफ यू डेलिबरेटली डिड दैट फॉर सम रीजन, सो द गूगल मैप शोज रीराउटिंग. सो रीराउटिंग इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ डेलिबरेटिंग एजेंट विच इज थिंकिंग एज पर इट्स पास्ट नॉलेज बेस, एंड देन इट विल प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फ्रॉम द करंट लोकेशन दैट यू आर देयर विद. ओके, नाउ हाइब्रिड एजेंट क्या होगा, एज यू हैव राइटली गेस्ड, जो कॉम्बिनेशन हो रिएक्टिव का और डेलिबरेटिव अप्रोचेस का दोनों का. तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार में आपको एग्जांपल बता रहा था, दैट इज मोर ऑफ अ हाइब्रिड एजेंट जिसमें आपको रिएक्टिव प्लस डेलिबरेटिव दोनों की जरूरत होगी. आप हमेशा केवल प्रोएक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते, समटाइम्स यू ऑल्सो नीड टू थिंक कि बेस्ड ऑन, अगर ऑटोमेटेड कार की बात करें तो कौन से लेन पर जाना सही रहेगा, कहाँ ट्रैफिक है कहाँ ट्रैफिक नहीं है, व्हाट शुड आई डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. सो एवरीथिंग नीड्स टू बी कंसिडर व्हेन इट कम्स टू अ सेल्फ ड्राइविंग कार. इंटेलिजेंट रोबोट्स की बात करें, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ हाइब्रिड एजेंट. क्या होगा, फास्ट प्लस लॉजिकल, मोर फ्लेक्सिबल, लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज करते हैं एक्सेट्रा. एजेंट कम्युनिकेशन की बात करें, एजेंट कम्युनिकेशन इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2 टाइप से हमारे पास बेसिकली एजेंट कम्युनिकेट करता है. फर्स्ट वन इज द मैसेज पासिंग, सेकंड वन इज द ACL. नाउ मैसेज पासिंग 3 टाइप से हो सकता है. बेसिकली एजेंट कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है, देखिए एजेंट कम्युनिकेशन की जरूरत यह है, मल्टी एजेंट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां से एक से ज़्यादा एजेंट इन्वॉल्व हैं. तो अगर एक से ज़्यादा एजेंट इन्वॉल्व होंगे तो क्या उनके बीच में कम्युनिकेशन नेसेसरी एक फैक्टर प्ले करेगा. येस, इट विल बी ऑब्वियसली एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल प्ले इट्स रोल. तो इसी एजेंट कम्युनिकेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है. तो पहले बाय मैसेज के द्वारा एजेंट 3 टाइप से कम्युनिकेट करता है. फर्स्ट वन इज पॉइंट टू पॉइंट, सेकेंड वन इज ब्रॉडकास्ट एंड थर्ड वन इज मीडिएटेड. पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक एजेंट को डायरेक्टली दूसरे एजेंट से बात करनी है, सो वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करेगा. ब्रॉडकास्ट मतलब एक एजेंट को अपने एनवायरनमेंट में सभी दूसरे एजेंट से बात करनी है, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज पासिंग का यूज करेगा. एंड मीडिएटेड का मतलब है कि एक एजेंट को दूसरे एजेंट से बात करनी है बट वो डायरेक्टली बात ना करके किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बात करेगा. सो दैट इज नोन एज द मैसेज पासिंग. एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस भी होती हैं आप कुछ, जैसे वी ह्यूमंस टॉक इन वेरियस डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऐसे ही आप मान सकते हैं एजेंट भी अपनी खुद की एक लैंग्वेजेस में बात करते हैं. एंड अगेन इट इज ऑफ 2 type. There are 2 type of agent communication language. First one is the knowledge query and manipulation language, and the second one is your foundation of intelligent agent, that is the FIPA agent communication language. एक एक करके देखते हैं दोनों क्या हैं. बहुत सिंपल है. नॉलेज क्वेरी एंड कम्युनिकेशन लैंग्वेज एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो एजेंट यूज करते हैं नॉलेज को एक्सचेंज करने में और क्वेरी को प्रोसेस करने में. बस दैट्स इट. यस, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है. मैसेज कंटेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन से,
वो कुछ भी मैसेज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एजेंट को अपने आप में लाइक टास्क से रिलेटेड इंडिपेंडेंट हो, इम्प्लीमेंट करनी हो, उससे डिपेंडेंट ही हो। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। एजेंट अपनी कंटेंट को एक्सचेंज करने के लिए भी इंफॉर्मेशन को मतलब कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे एजेंट से। प्रोटोकॉल फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, क्या क्या प्रोटोकॉल हम लेते हैं बेसिकली, होता कैसे है KQML। तो 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली, कंटेंट लेयर, मैसेज लेयर एंड कम्युनिकेशन लेयर। कंटेंट लेयर इज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मैसेज लेयर लॉजिक ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपका बेसिक कंटेंट क्या है, आपका क्रक्स क्या है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे टू द अदर एजेंट, तो दैट इज द कंटेंट लेयर। मैसेज लेयर में उस कम्युनिकेशन का लॉजिक क्या है, व्हाई द एजेंट इज कम्युनिकेटिंग दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, तो वो आ जाता है मैसेज लेयर में। एंड कम्युनिकेशन लेयर में क्या आ जाएगा कि कम्युनिकेट कैसे होगा। बेसिकली कम्युनिकेशन लेयर ही हमारा कम्युनिकेट करवाती है दो एजेंट्स के बीच में, सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। सो ये पूरा एक तरह से कह सकते हैं आर्किटेक्चर एंड फ्लो रहता है KQML का। इन द सिमिलर फैशन फीपा भी कुछ अलग नहीं है इससे, इट इज़ वेरी सिमिलर टू KQML। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव्स जो हैं हमारे, जैसे एजेंट जो वर्ड्स अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करता है सच एज रिप्लाई विद, प्रोटोकॉल एंड ऑन्टोलॉजी, ये थोड़े KQML से डिफरेंट हो जाते हैं। ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये भी एक स्टैंडर्ड एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जो इंटरेक्शन करती है मल्टी एजेंट सिस्टम में। डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसा मैंने पहले बताया प्रिमिटिव्स को और KQML से, बस बाकी मोस्टली चीज़ें यहाँ पे सिमिलर हैं। तो ये दोनों मिला के फीपा एज वेल एज KQML एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन मेथड एस्टैब्लिश करती हैं बिटवीन द एजेंट। आई होप आई एम क्लियर देयर। Now, the next topic is the trust in the software agent. So, how we can actually build trust in the software agent? तो trust कैसे बढ़ेगा जब agent मतलब अच्छा feedback दे, like we have good feedbacks regarding the agent, and trust refers to the confidence an agent has to the another agent behavior. It can be between human agent also, it can be between different agents also. तो फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ट्रस्ट को, कि पास्ट इंटरेक्शन कैसा रहा, रिलायबिलिटी, रेपुटेशन। सो ट्रस्ट इज एसेंशियल इन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओपन सिस्टम इफ देयर इज एन एजेंट कम्युनिकेशन गोइंग ऑन। सो अगेन ट्रस्ट इज वेरी मच नेसेसरी। जैसे ह्यूमंस में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही एजेंट्स में भी अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन वी हैव मल्टी एजेंट सिस्टम। आई होप आई हैव एक्सप्लेन दिस कंप्लीट टॉपिक, जो कि वही मल्टीपल एजेंट्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ओके, मल्टी एजेंट नेगोशिएशन की बात करें, जस्ट लाइक ह्यूमन में नेगोशिएशन करते हैं कि आपने इतना इस पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस पूछा, हमने कुछ प्राइस दिया एंड वी फाइनली सेटल टू अ कॉमन प्राइस एट लास्ट। सो लाइक दिस ओनली नेगोशिएशन भी कुछ एजेंट में भी होता है, जहाँ पे नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मनी बट ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स एंड टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे वो आपस में नेगोशिएट करते हैं। इसी के बेसिस पे एक प्रोटोकॉल है दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट नेट प्रोटोकॉल। कॉन्ट्रैक्ट नेट प्रोटोकॉल इज अ टास्क एलोकेशन एंड नेगोशिएशन प्रोटोकॉल। ये नेगोशिएशन का ही एक प्रोटोकॉल है जो मल्टी एजेंट सिस्टम में एजेंट यूज करते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, नेगोशिएशन एंड टास्क को एलोकेट करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल बना दिया है ताकि लास्ट मिनट एम्बिग्विटी को अवॉइड करा जा सके, एंड एक स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म से ही हम सारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं और नेगोशिएशन कर रहे हूँ। सो इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर एजेंट टू कॉर्पोरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट टास्क अमंग देमसेल्व्स। तो इस प्रोटोकॉल में बेसिकली होता क्या है, मैं आपको और अच्छे से डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। सी, ये हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट नेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे एक मैनेजर होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। बेसिकली मान लीजिए दीज टू आर द एजेंट्स। अब देयर इज अ टास्क अनाउंसमेंट कि ये टास्क आपको करना है। अब इट इज ऑन द कॉन्ट्रैक्टर कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस टास्क को एक्सेप्ट करेगा या वो रिफ्यूज करेगा। तो अगर उसने एक्सेप्ट करा तो वो ऑब्वियसली एक प्रपोजल जारी करेगा दैट हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। अगर रिफ्यूज कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, यू कैन सी बात खत्म है मैनेजर की तरफ से। बट अगर प्रपोज करा तो फिर मैनेजर आगे का स्टेप लेगा कि वो उस पर्टिकुलर प्रपोजल को अब अपनी तरफ से सेलेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है। सो अगर रिजेक्ट कर दिया तो अगेन बात खत्म, बट अगर सेलेक्ट करा उसने तो कॉन्ट्रैक्टर क्या मतलब उसमें फेलियर हुआ लास्ट में या अगर सक्सेस हुआ तो उसको मैनेजर को इन्फॉर्म करना। सो ये जैसे आपने देखा तो ये एक स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म था, कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल था बिटवीन मैनेजर एंड कॉन्ट्रैक्टर। सो ऐसे ही हमारा CNP काम करता है। वॉट इज़ द नीड, मतलब इस पूरे प्रोटोकॉल की नीड क्या थी। मल्टी एजेंट सिस्टम में हर एक एजेंट की डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है, कोई किसी काम में अच्छा होता है, कोई किसी काम में अच्छा होता है। नो एजेंट हैज़ ग्लोबल कंट्रोल, सारी चीज़ों का एक्सेस एक एजेंट के पास होता नहीं है। टास्क में अराइव डायनेमिकली, हो सकता है टास्क एक एक करके आ रहे हों एंड एट अ डायनेमिक इंटरवल्स आ रहे हों, सारे टास्क एक साथ ना आ गए हों। सो CNP हमें हेल्प करता है कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग को वाइडनिंग कर सकें एंड डिसेंट्रलाइज कर सकें, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छे से करें, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल टास्क असाइनमेंट करें।
रेपुटेशन एंड मल्टी एजेंट सिस्टम की बात करें तो रेपुटेशन अगेन आप ह्यूमन से कंपेयर कर सकते हैं सारी चीज़। रेपुटेशन इज द मेजर ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस बेस्ड ऑन द फीडबैक। जैसे एजेंट्स को हमने फीडबैक दिए हैं उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर एजेंट की रेपुटेशन बढ़ती है। अगर बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे एजेंट ने उसे अच्छे फीडबैक दिए हैं देन ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हैव अ गुड रेपुटेशन इन कंपेरिजन टू द अदर एजेंट। तो ये सारी चीज़ें एजेंट्स में होती हैं। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। With this, the next topic we are going to start and the last topic of unit 5, which is the explainable artificial intelligence. So what is explainable AI? ChatGPT, a very famous example which don't need any kind of introduction. चैट जीपीटी क्या करता है बेसिकली, जो भी वो रिस्पॉन्स देता है दैट इज़ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। तो यहीं लिखा है कि एक्सप्लेनेबल एआई वो एआई होता है जो अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करने की क्षमता रखे। वो डिसीजन एंड प्रिडिक्शंस कैन बी अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमंस, सो दैट इज नोन एज द एक्सप्लेनेबल एआई। इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि ह्यूमंस आसानी से उसको इंटरप्रेट कर सकें। बिल्ड्स द यूजर ट्रस्ट, इंश्योर्स फेयरनेस, हेल्प्स इन डीबगिंग द एआई सिस्टम रिक्वायर्ड इन सेंसिटिव डोमेन्स लाइक हेल्थ केयर एंड फाइनेंस। तो इन चीज़ों में एक्सप्लेनेबल एआई की बहुत ज़्यादा नीड है। ब्लैक बॉक्स मॉडल की यदि हम बात करें, एक छोटा सा टॉपिक है कि सम एआई मॉडल्स एक्ट्स एज ब्लैक बॉक्सेस मीनिंग देयर इंटरनल वर्किंग इज नॉट इजीली प्रिडिक्टेबल। बस ऐसा मान लीजिए कि देयर इज अ बॉक्स एंड आपने कोई, अगर आप कोई टास्क दे रहे हो किसी भी एआई को, दिस इज द टास्क विच इज गिवन बाय यू, तो और एआई आपको उसका आउटपुट परफॉर्म करके उसने दे दिया, बट यू एक्चुअली डोंट नो द इंटरनल वर्किंग कि उसने वो काम कैसे करा। द वाई ऑफ द वर्क यू डोंट नो कि उसने कैसे करा। द हाउ ऑफ द वर्क यू डोंट नो कि उसने वो चीज़ कैसे करी, बट यू ओनली नो दैट दिस टास्क हैज़ बीन परफॉर्म्ड और नॉट। तो हमें केवल आउटपुट का एक्सेस होता है, हमें इंटरनल वर्किंग उसकी नहीं पता होती। फीचर इंपॉर्टेंस की टेक्निक्स होती है, रूल बेस्ड हो सकते हैं, लोकल एक्सप्लेनेशंस एंड विजुअलाइजेशन मेथड। दीज आर अगेन सम ऑफ द टेक्निक जो एक्सप्लेन करती हैं ब्लैक बॉक्स मेथड को। ट्रस्ट इन एआई, अगेन द सेम टॉपिक इट इज़ कि ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक्सप्लेनेबिलिटी इंप्रूव करती है ट्रस्ट को ऑब्वियसली। एंड लास्ट केस स्टडी जो होती है एक्सप्लेनेबल एआई की, तो दो केस स्टडीज़ फेमस हैं, दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एंड कंप्यूटर विजन की। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि अगर एक्सप्लेनेबल एआई हमारा एनएलपी में है तो वो क्या करेगा कि ये टेक्स्ट स्पैम में क्यों क्लासिफाई हुआ, उसकी प्रॉपर रीजनिंग हमें एक्सप्लेनेबल एआई देगा और हाईलाइट करेगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, ताकि हम आगे भी समझ सके कि वो अगर टेक्स्ट आता है तो दैट इज अ स्पैम और नॉट। तो टेक्स्ट में अगर वो हमें एक्सप्लेन करके देता है चीज़ों को, सो दैट इज नोन एज द एक्सएआई इन एनएलपी डोमेन। और अगर हमें कंप्यूटर विजन की बात करें, जहाँ पे हमें इमेज क्लासिफिकेशन पे अगर कोई डिसीजन लेने हो, तो एक्सएआई इन कंप्यूटर विजन की हम बात करेंगे, जिसमें हम हाईलाइट करेंगे कि इमेज रीजन को एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिडिक्शन, कि अगर ये पर्टिकुलर ह्यूमन डिटेक्ट नहीं हो पाए या ये पर्टिकुलर इमेज में अगर वो सही से डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसके पीछे प्रॉपर रीजन हमें देगा। दैट इज कॉल्ड द एक्सएआई इन द कंप्यूटर विजन। एक्सएआई इंश्योर्स एआई सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होंगे वो तभी वो अपने जो भी डिसीजन है उनका वो आराम से हमें उसके ऊपर रीजनिंग दे पाएंगे एंड वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक होंगे। With this, all the topics of Unit 5 is also covered. The complete artificial intelligence is now completed. The notes are given in the description, and please do subscribe my channel for this kind of content, because honestly it takes so much effort to like prepare these kind of content. So please support, like, share, subscribe my video. Thank you so much for watching.